It is sympathetic trunk. Now the sympathetic trunk only of the neck region, right? Cervical part of the sympathetic trunk, right? It's right from the cervical, thoracic, lumbar, sacral, and reaches to the coccyx as ganglion impar. So you have a beaded chain both the sides of the spine, right, lying anterior to the transverse process of the vertebrae, overlying to the prevertebral muscles. That's how it descends down on either side of the spine. And even remember, can anybody tell me that sympathetic chain, it descends from thorax to abdomen via which foramen? Which opening, through which opening this sympathetic chain reaches from thorax to abdomen? Yes, anybody? Neither through jugular. I don't know, Shejal, what are you understanding with that? I'm asking from thorax to abdomen, through which opening in the diaphragm does the sympathetic chain reaches from thorax to abdomen? Which opening? Yes, Osama, you're correct. It is medial arcuate ligament. It's below the medial arcuate ligament that the sympathetic chain crosses the diaphragm. Below the medial arcuate ligament. Okay, not middle, it is medial. Okay. So we're discussing about the sympathetic trunk. Now, sympathetic trunk means we are concerned about sympathetic outflow, right? So sympathetic outflow is thoracolumbar outflow, right? Thoracolumbar outflow, it includes, you know, the T1 to L2 part of the sympathetic outflow. So focus on this diagram. This is the neck region, right? We are trying to show you the sympathetic chain in the neck region. So first let's revise, like, sympathetic outflow is thoracolumbar outflow, and for that, there is this lateral horn in the gray matter of the spinal cord in these spinal segments from T1 to L2. If you take a cross section, you will find that the butterfly shaped gray matter in the spinal cord has a lateral horn, and that lateral horn in these segments T1 to L2, there is this origin of preganglionic sympathetic fibers, right? Now, these preganglionic sympathetic fibers, they emerge out from the spinal segment through the anterior horn along with the motor root, right? So when they reach the spinal nerve, then they continue in the anterior, or you can say ventral primary rami. In the ventral primary rami, from the ventral primary rami, there are two, the sympathetic beaded, ganglion, the sympathetic ganglion attached to the ventral primary rami of a spinal nerve with the help of two roots. One is, the proximal is the gray root, and the distal one is the white root. So this preganglionic fiber, they reach the sympathetic ganglion through the distal white root. That's called white rami communicantis. Then in this ganglion, they'll relay. Actually, they have three options. Either in the chain, in the sympathetic chain, let's say we're talking about T4th, like we're talking about fourth spinal segment, right? तो fourth spinal segment में जो ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, राइट, ये वेंट्रल रूट से निकल के स्पाइनल नर्व के थ्रू गया. स्पाइनल नर्व हैज टू रेमाई, डॉर्सल एंड वेंट्रल रेमाई. वेंट्रल रेमाई में आया. वेंट्रल रेमाई में देन देयर आर टू रूट्स अटैच्ड, जिसके थ्रू दिस सिंपैथेटिक चेन गैंग्लियन इज अटैच्ड थ्रू द व्हाइट वन, व्हिच इज द डिस्टल व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंटिस. दैट्स अ डिस्टल रूट ऑफ द सिंपैथेटिक गैंग्लियन अटैच्ड टू T4 स्पाइनल नर्व. उसके थ्रू, डिस्टल रूट के थ्रू, इट रीचेस द गैंग्लियन. नाउ it can relay in the ganglion, the same ganglion, right? It will relay in the same ganglion. That's one option. And from there in the ganglion, because ganglions are meant for synapse, right? So yahan pe synapse hoga, they'll relay. Then the postganglionic sympathetic fibers, because you've seen that the sympathetic
ganglion is so close to the spinal cord that you know that the preganglionic sympathetic fibers are very small fibers, but then the postganglion sympathetic fibers, they'll have to reach to the distant organs, distant effector sites. So the postganglionic sympathetic fibers are long fibers, right? And they are mostly unmyelinated. That's why it's a diffuse phenomenon. Okay? So the postganglionic fiber from the ganglion will emerge out through the gray rami communicantis, which is a proximal root, right? So proximal root say it will emerge out. Now it will carry on through the ventral rami and to its distribution of the spinal nerve. Whatever, you know, it's a vessel, you know, if it goes to the sympathetic nerve ke saath ja rahi hai, so it will supply somatosensory regions like, you know, the body wall and you know, vasomotor, pilomotor and pseudomotor, you know, that's the supply in the skin. But then it also supplies viscera also. For the viscera, you know, there it, what will happen, it will not follow it. Sometimes of course it takes the course of the nerves. They actually, like, you know, fiber, the postganglionic sympathetic fibers, they're like climbers. They either take the route of the nerve or they climb upon the tunica adventitia of the vessels. So they climb upon the vessels. Whatever artery it finds nearby, it climbs up over to this artery and forms a plexus. And along the course, it continues around the artery, and whenever it reaches a nerve to an organ, then it from the arterial plexus, you know, sympathetic plexus of the arteries, it again, you know, climbs over to the nerves and reach the effector organ. तो ये है दूसरी चीज, ये कि ये जो यू नो रिले हो रहा है सिंपैथेटिक प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स का, they might not be at the same vertebral level, same spinal segment. So it can either ascend up in the sympathetic chain, like, you know, that head and neck region में you can cranial nerves में बात करें and cervical nerves की बात करें, there is no sympathetic outflow. And even in the lower lumbar and sacral region also, there is no sympathetic outflow. So that means sympathetic outflow is only from T1 to L2. So it'll either have to ascend up in the sympathetic chain to supply the head and neck and upper limbs, or it'll have to descend down into the sympathetic chain to supply the lower limbs, because, you know, corresponding just sciatic nerve की बात करें, that is L4, L5, S1, S1, S2, S3, and that region doesn't have any sympathetic outflow. So the preganglionic sympathetic fibers have three options. Either they remain the same sympathetic ganglion according to the sympathetic segment, spinal segment, same segment mein, either it will ascend up in the beaded chain up to the cervical region, or it can descend into the sympathetic chain down even up to the coccyx, right? There is the two chains meet together, that anterior to the tip of coccyx, and that's called ganglion impart. Okay. तो थोड़ा आइडिया होगा थोरैक्स में, व्हेन आई वाज टीचिंग थोरैक्स देन आल्सो हमने इसका थोड़ा सा रिवाइज कराया था. And sympathetic outflow, I told you, is like, you know, you have to have this idea that it's dominated in cases of, you know, fear, fight, phobia, rash. So in case of fight and flight things, right, there is this sympathetic dominance. And how it acts on basically autonomic nervous system, maybe sympathetic, parasympathetic, it acts on the smooth muscles, like, you know, smooth muscles jahan pe bhi hongi, because they are involuntary in action. Autonomic nervous system is involuntary. So ये तो sympathetic outflow है. और फियर फाइट, कहीं पे इंस्ट्रक्शंस रिलैक्स होंगी, कहीं पे स्मूथ मसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी. इट ऑल डिपेंड्स, यू नो, वही you have to have this idea कि कहाँ पे, जैसे प्यूपल में क्या होगा, मिड्रियासिस होगी, मियोसिस होगी, you know,
फिर थिंक अबाउट दैट फियर फाइट फोबिया वाला थिंग. फियर फाइट में देयर विल बी पिपुलरी डायलिटेशन, दैट इज मिड्रियासिस, ड्राइंग ऑफ माउथ जिसे कहते हैं, सिक्रीशंस जो होते हैं सलाइवरी वो रुक जाएंगे, यू नो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो है वो डिले हो जाएगी, पाइलोरिक एंड एनल स्फिंक्टर विल कंस्ट्रिक्ट, यूरिथ्रल स्फिंक्टर यानी कि किसी को मिक्चुरेशन, अर्ज टू मिक्चुरेशन या डेफिकेशन, बट इन केसेस ऑफ फियर एंड फाइट दे ऑल get sustained because of the constriction of the sphincters. तो ये हो गया. प्लस वैसोडाइलेटेशन, कहीं पे वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है इमेजिन, और कहीं पे वैसोडाइलेटेशन. कहाँ पे होगा वैसोडाइलेटेशन? इन द स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, बिकॉज वन हैज टू रन फॉर हिज लाइफ और टू फाइट. तो blood vessels to the skeletal muscles will dilate. So this all, इसको अच्छे से पढ़ना होता है कि किस रीजन में कहाँ पे क्या होता है, एंड द कॉन्सेप्ट इन माइंड शुड बी ऑफ लाइक फियर एंड फाइट वाले कंडीशन. ठीक है, एंजाइटी रिलेटेड. और जैसे स्वेट ग्लैंड्स, स्वेटिंग इंक्रीजेस इन पाम एंड सोल्स इन केस ऑफ एंजाइटी. ठीक है, अब हम बात इसकी करेंगे पैरासिम्पैथेटिक. पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक कॉजेस ब्रेडिकार्डिया. तो पैरासिम्पैथेटिक जो होता है ये क्रेनियोसेक्रल है. क्रेनियोसेक्रल में, क्रेनियम में मैंने बताया था सेवेंथ, नाइन्थ, टेंथ and 11th, these nerves are involved in parasympathetic outflow. ठीक, एंड पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो में थर्ड नर्व के थ्रू भी आते हैं, सीलियरी गैंग्लियन की. तो ये तो क्रेनियल है. क्रेनियल में जो गैंग्लियन है, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन, रिमेंबर दीज 4 गैंग्लियन: सीलियरी गैंग्लियन, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, ओटिक गैंग्लियन एंड टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन. नाउ सी, सिंपैथेटिक गैंग्लियन जितने भी थे हर स्पाइनल सेगमेंट के अलोंग थे, एंड दे वर ऑल अराउंड द साइड ऑफ द स्पाइन. बट जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है, दे आर लाइक फार अवे फ्रॉम द ब्रेन, right, close to the viscera. ठीक है, टेरिगोपैलेटाइन is outside the cranium, submandibular is outside the cranium in the submandibular region, otic is in the parotid region outside the cranium, and ciliary ganglion is in the orbit outside the cranium. So they are away from the cranium, from the brain or the CNS. So their preganglionic fibers are long neurons. However, the postganglionic parasympathetic fibers are short because they are very close to the organ it innervates. And both pre and post are myelinated fibers. So this action, because the postganglion fibers are myelinated as well as very close to the organ it has to supply. So parasympathetic is a very precise phenomenon. प्रिसाइज रिस्पॉन्स आता है. इसी तरह से S2, S3, S4 का है. इन दीज स्पाइनल सेगमेंट्स यू विल फाइंड द लेटरल हॉर्न इन द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. वहां से इनके प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं, एंड देन इट फॉर्म्स अ हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, और वो सप्लाई करते हैं पेल्विक विसरा के लिए. ठीक, तो एक तो आइडिया हो गया तुम्हारा, ये पहले से मैं बता चुका था, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का आउटफ्लो. एंड पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो रिलैक्स काम स्टेट ऑफ माइंड में प्रिसाइज जो एक्शन होना है, जैसे डाइजेशन होना है, राइट, डेफिकेशन, मिक्चुरेशन, इरेक्शन, और pupillary constriction, focusing upon things. So that is how, like, parasympathetic works. ठीक, तो अब इस कॉन्सेप्ट के बाद हम अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने रिवाइजन कराना था, चूंकि थोरैक्स आई डोंट थिंक कि मैंने सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा कराया था, तो इसलिए मैंने रिवाइज कराया है. नाउ विल फोकस ऑन द सिंपैथेटिक ट्रंक ऑफ द सर्वाइकल रीजन. ठीक है, तो सर्वाइकल रीजन में क्या होता है? रिमेंबर, ये जो सिंपैथेटिक बीच में होता है स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, and either side you find is a sympathetic chain. But think about the sympathetic chain is descending down both the sides of the spine up till the sacrum and coccyx. But जैसे कि मैंने बताया अभी कि लेटरल हॉर्न सिंपैथेटिक यानी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स सिर्फ T1 to L2 में ही होंगे, राइट? तो T1 to L2 segments में you will find that the sympathetic chain, sympathetic ganglion is attached to the anterior primary rami of the spinal nerves T1 to L2 with the help of both
gray and white rami communicantis. White rami communicantis से preganglionic fibers इंटर करते हैं और ग्रे rami communicantis से postganglionic fibers emerge out करते हैं from the ganglion. ठीक, अब बात करते हैं यही चेन जो है सिंपैथेटिक चेन, दिस इज ascend up, राइट, दिस विल ascend up into the cervical region. लेकिन अब फर्क क्या आएगा? हेलो हेलो हेलो, आर यू कनेक्टेड? आर यू कनेक्टेड? हेलो 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 हेलो, आर यू कनेक्टेड? हेलो, आर यू, is it visible? Okay, then it's good. I thought it got disconnected. Okay. So I was just revising. Did you hear all what I taught you just now? Because the chat window was not open for me that time. So I was slides. I didn't move in the slides. I was just revising. I was on the first slide. I was just revising the sympathetic and parasympathetic outflow that was to be taught in, that actually I taught in the thoracic when I was teaching the thorax. Got it? So it was just a revision. Hope you got understood that. You've got some revision of the past about the sympathetic and parasympathetic outflow, because that's the must for understanding this. So, okay, good. Now listen here. Now we are talking about the sympathetic chain in the cervical region, and as I said, as I'm telling that in the thoracic region, this sympathetic chain T1 to L2 spinal segment, the sympathetic ganglion is attached to the ventral primary rami of these spinal nerves T1 to L2 with the help of both gray and white rami communicantis. Got it? White rami communicantis से क्या होता है? The preganglionic fibers enters the ganglion and it is a distal route. And gray rami communicantis is a proximal route. उसमें से क्या होता है? Post ganglionic sympathetic fibers emerges out of the ganglion through the gray rami communicantis. ठीक है? And because it's unmyelinated, that's why you call it as gray rami communicantis. Hope this much is clear. Okay, now because this chain is extended up in the cervical region, but because that there is no sympathetic outflow, you don't find a gray horn in the gray matter of the spinal segments in the cervical region. So there will be no preganglionic fibers here. So remember, important thing is, because you don't find a gray rami, because you don't find preganglionic fibers in the cervical region, so in the cervical spinal nerves, right, C1 to C8, you will find the sympathetic ganglion attached to these spinal nerves, but only with the gray rami communicantis. Very important point है ये. तो जो चेन है, बीडेड चेन, ये एक्सटेंड करेगी ऊपर सर्वाइकल रीजन में, लोअर लंबर सेकल रीजन में भी, राइट, और सभी स्पाइनल वेंट्रल रमाई स्पाइनल नर्व से अटैच्ड भी होगी, लेकिन ओनली विद द ग्रे रमाई कम्युनिकेंटिस. यू विल नॉट फाइंड द व्हाइट रमाई कम्युनिकेंटिस इन दीस सेगमेंट्स, बिकॉज आई टोल्ड यू व्हाइट रमाई का मतलब हो गया प्री गैंग्लोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, और प्री गैंग्लोनिक सिर्फ T1 to L2 में होते हैं. ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई. अब क्या है, ये चेन जो है, बीडेड चेन, theoretically, actually developmentally बाद में क्या क्या changes होते हैं, that's a different thing, but theoretically each spinal nerve segment has its own sympathetic ganglion. So the chain, actually this chain has been shown both the sides. It is the extension of the sympathetic chain in the cervical region.
right? So theoretically there should be 8 sympathetic ganglion in the cervical region, right, corresponding to the 8 cervical segments, spinal segments. So there are 8. Now in the among the 8 ganglion, 8 sympathetic ganglion in the cervical region, the upper four fusion of upper 4 cervical sympathetic ganglion, they get fused. ठीक है, and they get fused to form superior cervical ganglion. It's very important to know that superior cervical ganglion is formed by the fusion of upper 4 cervical sympathetic ganglion. So it is a big in size, around 2.5 centimeter, right? 2.5 centimeter is the size. Imagine that is resting, below the transverse process of the atlas vertebrae. That means it overlies C2 and C3 vertebrae. Take. So it overlies C2 and C3 vertebrae, or you can say just below the transverse process of atlas vertebrae. ठीक है, ये both the sides of the spine है ना, cervical spine के both the side हो गए, and it is resting over the prevertebral fascia. Prevertebral के fascia के अंदर क्या होंगी? Prevertebral muscles होती हैं, longest cervicis, longest capitis, right? और इसके एंटीरियरली क्या होंगे इस चेन के? आई मीन द एंटायर चेन आई एम टॉकिंग अबाउट. लेट मी कंटिन्यू फर्स्ट. देन मिडिल सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन दैट इज formed by the fusion of next to, that means fifth and sixth cervical sympathetic ganglion, they fuse to form the middle cervical ganglion, and this one is the smallest among the three. This is the largest and this is the smallest. ठीक. So this smallest is sometimes even not present. ठीक है, it is sometimes not even seen. ठीक. And even sometimes it is seen as small beaded structure. It's any splitted beaded structure मिल सकता है ये, और कभी हो सकता है it might not be present. And if present, it will be opposite to the sixth cervical vertebrae. ठीक. तो एक बार जरा सरफेस एनाटमी या ट्रांजैक्शन एनाटमी लेट्स रिवाइज. हु विल टेल मी, ये मैंने पढ़ाया था, दैट कॉमन कैरोटिड आर्टरी bifurcates into its two terminal branches at what vertebral level? Very good, C4. And can you correlate with any viscera? Can you correlate with any viscera? The bifurcation of common carotid lies opposite to the upper border of thyroid cartilage. Yes, to the upper border of thyroid cartilage. ठीक. तो you remember कि उस लेवल पे जाके कॉमन कैरोटिड बाइफरकेट करती है. तो एक आइडिया हो गया, यानी कि ये सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन कहाँ मिलेगा? ये थायराइड कार्टिलेज के ऊपर होगा, क्योंकि थायराइड कार्टिलेज का अपर मार्जिन कहाँ पे आ रहा है? C4 के लेवल पे आ रहा है. दूसरी चीज क्या है, ये मिडिल वाला कहाँ मिलेगा? उसके नीचे मिलेगा थायराइड कार्टिलेज के, एंड थायराइड कार्टिलेज के नीचे क्या आती? क्रिकॉइड कार्टिलेज. ठीक. तो यू कैन से दैट मिडिल सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन इज सीन अपोजिट, यानी कि C6 वर्टिब्रल लेवल पे इट्स द क्रिकॉइड कार्टिलेज. तो मिडिल सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन इज सीन अपोजिट टू द क्रिकॉइड कार्टिलेज, एंटीरियर टू द 6th cervical vertebrae. You can say anterior to the transverse process of the 6th cervical vertebrae. Then down below in the continuity, you find another ganglion. Now, because there are 8 sympathetic ganglion in the cervical region, the last two, yani 7th and 8th sympathetic ganglion, they fuse to form the inferior cervical sympathetic ganglion. ठीक. Now, inferior cervical sympathetic ganglion जो ये है, ये दिस विल बी फाउंड कहाँ पे मिलेगा ये? तो ये जो 7th and 8th से जुड़ के बन रहा है, राइट? तो 7th nerve, if you remember, will it pass in between 6th and it will emerge out between 6th and 7th cervical vertebrae, or between 7th and T1 vertebrae? 7th cervical nerve emerges from between which two vertebrae? Akash, you're correct. It is between C6 and C7. ठीक है. So cervical nerves emerge from above their corresponding vertebrae.
तो जानवी 8th वर्टिब्रे होता ही नहीं है, कहां से तुम बोले जाते हो? तुम लोग ध्यान से सुना करो, समझा करो. So cervical, 7 cervical nerve emerges between C6 and C7 cervical vertebrae. So, and 8th cervical nerve will emerge between 7th cervical and first thoracic के between निकलेगा. And first thoracic से क्या जुड़ रहा होगा transverse process से? The first rib, head of the first rib and the tubercle of the first rib is attached to the T1 thoracic vertebrae. ठीक है, तो टिपिकल एटिपिकल रिब भी होती है फर्स्ट रिब, और एटिपिकल थोरैसिक वर्टिब्रे भी होता है. तो पूरी तरह से फर्स्ट रिब से जुड़ती है, फर्स्ट रिब पूरी तरह से फर्स्ट वर्टिब्रे से जुड़ती है थोरैसिक में. तो ये जो 7 स्पाइनल नर्व है, सर्वाइकल नर्व है, उसके जस्ट नीचे और फर्स्ट रिब के नेक के ऊपर पाया जाता है. ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ये हो गई. ठीक है, और ये जो वर्टिब्रल आर्टरी है, foramen transversarium, that is seen in the transverse process of the cervical vertebrae, in all the cervical vertebrae, that's why it is a hallmark feature for identifying a cervical vertebrae. लेकिन ये जो फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम है, इसमें अपर 6 में से ही वर्टिब्रल आर्टरी पास होती है. It does not passes through the foramen transversarium of the 7 cervical vertebrae. So what is important is here to know that this vertebral artery, you can see it is anterior, so you can say this inferior cervical sympathetic ganglion lies behind the vertebral artery. लोकेशन इसकी थोड़ी सी ध्यान रखना. ठीक है, तो ये 7th, जब 7th और 8th से मिल के बन रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं ये 7th और 7th और T1 वर्टिब्रे के बीच में पाया जाएगा. तो कैसे इसकी लोकेशन बताते हैं? इन फ्रंट ऑफ ramus of C8. Either you can say it lies behind the first part of the vertebral artery, or it lies in front of the ramus of C8 vertebrae. लेवल क्या होगा? C7 सर्वाइकल वर्टिब्रे की ट्रांसवर्स प्रोसेस के नीचे होगा और फर्स्ट रिब के नेक के ऊपर होगा. ठीक, बट most of the time it has also been seen that T1 it's normal, यानी कि उसमें ग्रे एंड व्हाइट रमाई कम्युनिकेंटिस दोनों होंगे T1 में. तो T1 sometimes get fuses with the inferior cervical sympathetic ganglion. When T1 fuses with the inferior cervical sympathetic ganglion, size becomes a little more bigger, and the branches emerging out become more. There will be more branches emerging out because after fusion of T1 sympathetic ganglion. So that its shape that it assumes is a star shaped, and that's why it's called a stellate ganglion. Stellate ganglion याद रखना. Stellate ganglion क्या होता है? It is formed because of the fusion of inferior cervical sympathetic ganglion with the T1 sympathetic ganglion. And if it's a stellate, now अब इसका लेवल थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि अब T1 का इन्वॉल्वमेंट हो गया. So where will be this? What's the exact location of stellate ganglion? क्या बोलोगे? Stellate ganglion will be found anterior to the neck of first rib. ठीक है, ये हो गई एग्जैक्ट लोकेशन किसकी? चैट विंडो कहां चली गई भाई? Anyways, I cannot see your chat window right now. So ये लोकेशन पता हो गई तुमको. इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन की लोकेशन क्या है? 8th ramus of 8th सर्वाइकल नर्व के एंटीरियर या नेक ऑफ फर्स्ट रिब के जस्ट अबव. अगर ये स्टिलेट गैंग्लियन बनता है यानी T1 जुड़ता है, तो इसकी लोकेशन हो जाएगी एंटीरियर टू द नेक ऑफ फर्स्ट रिब. ठीक, तो ये हो गई सिंपैथेटिक चेन. ये पूरी चेन अपनी ही सर्वाइकल जितनी भी नर्व्स हैं, सर्वाइकल नर्व्स, सबसे ये चेन जुड़ी हुई है विद द ग्रे रमाई कम्युनिकेंटिस ओनली, नॉट विद द व्हाइट रमाई कम्युनिकेंटिस. ठीक, और इस पूरी चेन के पोस्टीरियर रिलेशंस में क्या क्या आ जाएगा? प्रीवर्टिब्रल फाशिया पे रखी हुई है, उसके नीचे क्या होंगे? प्रीवर्टिब्रल मसल्स होंगे, लॉन्गस कोलाई, लॉन्गस कैपिटिस, और ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रे, और उनमें से क्या पास हो रही है? वर्टिब्रल आर्टरी.
ये सब चीज इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आ जाएंगे। लेकिन इंफीरियर वाले में वर्टिब्रल आर्टरी विल बी इन एंटीरियर रिलेशन, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट डजंट पासेस थ्रू द सर्वाइकल फोरामेन ट्रांसवर्स एरिया, तो ये आगे रहेगी इधर। अदरवाइज नेक में और अगर देखेंगे तो यहाँ पे देयर विल बी अ कैरोटिड शीथ बोथ द साइड्स, एंड कैरोटिड शीथ में क्या था, you will have common carotid up till the T4 vertebral level, यानी कि अगर हम बात करेंगे relations of superior cervical sympathetic ganglion, तो यहाँ it will be internal carotid artery because ये C2 C3 level है, लेकिन मिडिल और इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन के लेवल पे एंटीरियरली इट विल बी कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एंड शीथ के अंदर you also know is the interjugular vein and you have vagus, but what lies anterior to the chain is the common carotid in the lower part and internal carotid in the upper part, comma and carotid sheath। लेकिन ये बात और बता दें, ये जो मिडिल वाला है इसके जस्ट एंटीरियरली यू विल फाइंड इंफीरियर थायराइडल आर्टरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, याद रखना कि ये जो है दो आर्टरी से जुड़ा हुआ है, इंफीरियर वाला इट इज रिलेटेड टू द यू नो subclavian artery and vertebral artery anteriorly, and middle wala it is related to inferior thyroidal artery anteriorly, and superior cervical sympathetic ganglion is related to internal carotid artery anteriorly and on the medial side to the external carotid artery। ठीक, तो ये रिलेशंस हो गए, ध्यान से सुन लो अगर ध्यान से, उसके बाद बुक में एक रीडिंग लगाना, आई बिलीव यू विल गेट एवरीथिंग क्लियर, बस ध्यान से सुनते रहो। ठीक, तो एक चीज तुम्हारी यहाँ पे ये क्लियर हुई, लोकेशन सबकी, ओरिएंटेशन नेक में कहाँ पे पाया जाता है और उसकी लोकेशन क्या है। हर सिंपैथेटिक गैंग्लियन से यू कैन सी देयर आर ग्रे रमाई कम्युनिकेंटिस इमर्जिंग आउट लेटरली। ठीक, because there were eight spinal segments in the cervical region, so there will be 8 gray rami communicantes, 4 in the upper superior cervical sympathetic ganglion में 1 2 3 4 there are 4 gray rami communicantes। ठीक है, through these gray rami communicantes it will be attached to the corresponding cervical nerve। ठीक है, C1 C2 C3 C4 से ये जुड़ी होगी इस तरह से। ठीक, उसी तरह से C5 C6 से this middle cervical ganglion will be attached to the with the gray rami communicantis to the cervical nerve C5 C6। अब ये अपनी स्पाइनल नर्व में जाएगी, व्हाटएवर ये C5 C6 तुम्हें पता है, ये ब्रेकिया बाइसेप्स ब्रेकिया डेल्टॉइड तक की जाती है, अपर लिम्ब में जाती है, तो वहां ये वैसोमोटर सप्लाई पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस के थ्रू। उसके बाद C7 और C8 के ग्रे रमाई कम्युनिकेंटिस हैं, विद द हेल्प ऑफ विद इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन विल बी अटैच्ड टू द रमाई ऑफ C7 and C8 nerves, or C7 C8 will be on the medial border of the forearm, medial border of the arm, as well as the ulnar side of the palm of the hand, यानी कि उस साइड में ये वैसोमोटर सूडोमोटर पाइलोमोटर सप्लाई करेगी along through the inferior cord of the inferior trunk of the brachial plexus के थ्रू। ठीक, तो ये तुमने ये देख लिया ग्रे। अब हम बात करेंगे विसरल ब्रांचेस, लाइक मीडियल ब्रांचेस। ये जो दिख रही है सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन, इसके एपेक्स पे दिस इज वेयर ये एटलस के ट्रांसवर्स प्रोसेस के जस्ट एंटी रखा हुआ है, स्कल के जस्ट नीचे। ठीक है, वहां से यानी एपिक्स ऑफ दिस सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन एक नर्व निकलती है जिसको कहते हैं इंटरनल कैरोटिड नर्व। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि नाम ही नहीं सुना था, आर्टरी सुना था, नर्व भी नाम दे दिया गया है इसको। दिस इंटरनल कैरोटिड नर्व इट्स अ सिंपैथेटिक नर्व। ये जैसे ही ऊपर असेंड करेगी इट विल क्लाइम, एक्चुअली इट विल क्लाइम ओवर द ट्यूनिका एडवेंटिश ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इट विल क्लाइम ओवर द कहाँ चैट बॉक्स, चैट बॉक्स गायब हो जाता है, मुझे तो लगता है कि बंद ना हो गया हूँ। लो साला, इतनी सारी ये तब से पढ़ाए जा रहे हैं।
यार खल गई मुझे बहुत सारी देर से पढ़ा रहे, बहुत देर से हम पढ़ाए जा रहे हैं। ओ शिट, तो नेट की प्रॉब्लम से बंद हुआ है, बताओ। और यहाँ मुंह सुखाए बैठे हैं, पूरा पढ़ा पढ़ा के, पता नहीं कितनी देर से हट चुका है। पूछ ले तो भाई। हेलो हेलो, चैट बॉक्स खुलना। हाँ, एम आई ऑडिबल? Now tell me, actually it got disconnected. It got disconnected. Tell me, tell me till where had you understood? Okay, it's good if I was connected. No sir, okay, that's good. But I don't think यहाँ पे chat window हट गई थी, तो I was very confused. हाँ, ओके गुड। सो विसरल रिलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। लिसन हियर, एक्चुअली व्हाट इज हियर कि ध्यान से सुनने की बात है। सब कुछ सुन लोगे, किताब में रीडिंग डाल लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये वो कॉर्नर्स हैं आपके बुक के, वो चैप्टर्स हैं जिसपे ज्यादा जोर नहीं देते हैं लोग, स्टूडेंट्स भी, टीचर्स भी। क्योंकि लेकिन लेट मी टेल यू, ये फार्माकोलॉजी में बहुत काम आएगी, सर्जरी में बहुत काम आएगी, मेडिसिन में बहुत काम आएगी। जो कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। तो हम ये बता रहे थे कि सिंपैथेटिक ये विसरल ब्रांचेस, यस। सो ये जो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ये लार्जेस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियन है ये, और ये ऊपर जाएगी इंटरनल कैरोटिड के, इंटरनल कैरोटिड नर्व है तो इंटरनल कैरोटिड के ऊपर क्लाइंब कर जाएगी। अब इंटरनल कैरोटिड के ऊपर क्लाइंब करेगी, इंटरनल कैरोटिड क्रेनियम में इंटर करती। कहां से इंटर करती है? कैरोटिड कैनाल से। एंड कैरोटिड कैनाल कहाँ होता है? क्रेनियम के बेस में होता है, पेट्रस टेम्पोरल बोन के अंदर जाता है। तो ये इसी के साथ साथ पेट्रस टेम्पोरल बोन के अंदर चले जाएगी, ठीक है? अब पेट्रस टेम्पोरल अंदर जाएंगे, वहां जाकर के वो डीप पेट्रोसल नर्व बना लेगी, ठीक है? डीप पेट्रोसल नर्व बना लेगी तो वो किससे जुड़ जाएगी? फिर आई विल टेल यू कि डीप पेट्रोसल नर्व बनाएगी तो फिर वो ग्रेटर पेट्रोसल से जुड़ेगी, नर्वीडियन नर्व बनाएगी, एंड समहाउ इट विल रीच द टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, ठीक है? तो इन शॉर्ट ये जो है ये टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन तक पहुंचेगी, एक रूट। दूसरा रूट ये है कि जब ये इंटरनल कैरोटिड के साथ जाएगी तो पेट्रस के बाद ये कैवर्नस साइनस में जाती है इंटरनल कैरोटिड, राइट? कैवर्नस साइनस से इमर्ज करते ही जब ये सेरेब्रल पार्ट में आती है इंटरनल कैरोटिड, इंटरकैनाल, आई थिंक तुमको ये लार्ज ब्लड वेसल्स होता है, हेड एंड नेक पढ़ाया गया है, टॉपिक हो चुका है तुम्हारा। कॉमन एंड एक्सटर्नल कैरोटिड मैंने कराया था, इंटरनल कैरोटिड आई थिंक तुम्हें संजय सर ने कराया था। तो इंटरनल कैरोटिड की जो क्रीनल ब्रांचेस है, वन ऑफ द ब्रांचेस इज ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। तो ये जो अंदर चला गया है इंटरनल कैरोटिड नर्व फॉर्मिंग ए प्लेक्सस और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, पेट्रस पार्ट में इसने एक ब्रांच दी है डीप पेट्रोसल नर्व, ठीक है? तो डीप पेट्रोसल नर्व इज अ सिंपैथेटिक नर्व ब्रांच फ्रॉम द sympathetic plexus around the internal carotid. Then जब यही internal carotid ophthalmic artery देती है, इट्स cerebral part में जो इसकी ब्रांच होती है, तो ophthalmic artery के साथ भी यही sympathetic plexus कंटिन्यू करेगा climbing around ophthalmic artery, and that's how it will reach the orbit. और orbit में it will join the long ciliary nerves, and long ciliary nerves के साथ and short ciliary nerves के साथ it will supply the blood vessels of the orbit of the eyeball as well as the dilator pupillae, ठीक है? That means it's related, it's being these sympathetic nerves are all post ganglionic, इनके पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स ही तो यहाँ से निकलते हैं। तो इसका मतलब है ये जो हम गैंग्लियन के नाम ले रहे थे, जैसे डीप पेट्रोसल नर्व के, इसमें टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन के थ्रू जाएगा, ठीक है? लेकिन it will not relay there, it's already relayed, like it's a post ganglionic fiber। इसी तरह से जो ऑफ्थैल्मिक आर्टरी के साथ फाइबर्स जा रहे हैं वो सीलियरी गैंग्लियन के थ्रू होते हुए डायलेटर पिपिले तक पहुंचेंगे, बट इट विल नॉट रिले देयर बिकॉज दे ऑलरेडी रिलेड। वो रिले यहाँ पे हो चुका है सिंपैथेटिक, दे आर ऑल पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ठीक? तो इस तरह से ये तुमने देखा, ये दो, यानी कि अगर बात करें इंटरनल कैरोटिड नर्व जो है ये दो गैंग्लियन से रिलेटेड है, टेरिगोपैलेटाइन से एज वेल एज to the ciliary ganglion।
डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल के लिए है, और जो टेरिगोपैलेटाइन के थ्रू जाएगा वो आपको वैसोमोटर सप्लाई ऑफ द फेस एंड लैक्राइमल रीजन एंड ओरल कैविटी के लिए कवर करता है। अब देखो, दो विसरल ब्रांचेस मीडियल जा रही हैं, ठीक है। एक जा रही है ये एक्सटर्नल कैरोटिड ब्रांच, दिस ब्रांच विल वाइंड अराउंड द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक। अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड प्लेक्सस बना लेगी। ये कौन सी ब्रांच है? ये फ्रॉम द सुपीरियर सर्वाइकल सिम्पैथेटिक गैंग्लियन, इट विल फॉर्म पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स विल फॉर्म अ प्लेक्सस अराउंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और एक्सटर्नल कैरोटिड के फर्स्ट पार्ट से, कैन यू टेल मी द टू मेनिंजियल ब्रांचेस? रिमेंबर देयर वाज मिडिल मेनिंजियल एंड एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी फ्रॉम द मैक्सिलरी आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड है ना, एक्सटर्नल कैरोटिड के साथ क्लाइम करेगी, फिर मैक्सिलरी पे आ जाएगी। मैक्सिलरी के फर्स्ट पार्ट से कौन सी ब्रांचेस है? मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी पे जब ये प्लेक्सस फॉर्म क्लाइम करते करते मिडिल मेनिंजियल आर्टरी पे पहुंचेगी, और मिडिल मेनिंजियल आर्टरी किस गैंग्लियन से क्लोजली अप्रोक्सीमेटेड है? ओटिक गैंग्लियन से, ठीक है। रिमेंबर, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व वाज एम्ब्रेसिंग दिस आर्टरी विद इट्स टू रूट्स। और ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व में कौन से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स थे? पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स फॉर द सिक्रीटोमोटर फाइबर्स टू द पैरोटिड ग्लैंड। तो ओटिक गैंग्लियन पे ये पहुंचेंगे, और किसके थ्रू? मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के थ्रू, एंड इट विल कॉज द वैसोमोटर सप्लाई टू द पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। रूट कौन सा पकड़ा है इसने? मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक। दूसरी चीज देखो, यहाँ पे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पे जब ये क्लाइम करेंगे फाइबर्स, सिंपैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, देन थ्रू इट्स फेशियल आर्टरी, वो भी इसी की ब्रांच है, फेशियल आर्टरी पे क्लाइम कर जाएंगे फाइबर्स, राइट। अब फेशियल आर्टरी पे क्लाइम करते हुए जब फाइबर्स पहुंचेंगे, देन इट विल रीच टू अ गैंग्लियन क्लोज बाय, एंड दैट गैंग्लियन इज सबमैंडिबुलर सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। फेशियल नर्व के ऊपर क्लाइम करके तो जाते हैं सिम्पैथेटिक फाइबर्स, and these fibers without being relay in the submandibular ganglion will supply the submandibular and sublingual and anterior lingual salivary glands। यानी वैसोमोटर सप्लाई ये कंट्रोल कर लेगी, यानी कि एक्सटर्नल कैरोटिड के अलोंग जो सिम्पैथेटिक फाइबर्स जा रहे हैं, they will control the secretion of all the three parotid glands। parotid यानी कि parotid का थ्रू द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के थ्रू, एंड फेशियल आर्टरी के थ्रू जो जाएंगे वो किसको कंट्रोल करेंगे? सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स को, ठीक। यानी दोनों गैंग्लियन इससे कनेक्टेड हैं, दो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन इससे कनेक्टेड है, इसके रूट में पड़ते हैं, ठीक। इसके अलावा एक फेरिंजियल ब्रांचेस भी हैं। लुक हियर, इसमें फेरिंग्स की तो आर्टरी, क्योंकि फेरिंग्स इज सो क्लोजली अप्रोक्सीमेटेड टू एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्राई, ये वहीं पे तो रखा है एक्सिस के लेवल पे, C2 C3 के लेवल पे, तो वो डायरेक्ट ब्रांच जा रही है, फेरिंजियल ब्रांच, ठीक है। तो ये फेरिंजियल ब्रांच है, तो फेरिंजियल मसल्स के लिए है, फेरिंजियल म्यूकोजा के लिए है, देयर म्यूकोजल वॉल के लिए है। तो फेरिंग्स के लिए ब्रांचेस हैं, दे फॉर्म एक्चुअली अ प्लेक्सस नॉट ऑन द आर्टरीज बट ऑन द वॉल ऑफ द pharynx। Let me tell you that another mode that these fibers adopt while traveling, one of the commonest route is along the nerves के साथ चलती हैं ये sympathetic nerves की बात करें, they either take the course of the somatic nerves, either they follow the course of the arteries, or either they form a plexus around the viscera itself, ठीक है। जैसे कि फेरिंग्स के ऊपर पूरा प्लेक्सस बना लेंगे, ईसोफेगस पे प्लेक्सस बना लेंगे, ट्रेकिया के अलोंग प्लेक्सस बना लेंगे, राइट। तो सिंपैथेटिक प्लेक्सस कैन बी फॉर्म्ड, एंड यू हैव सीन दैट हाइलम ऑफ द लंग्स, उसमें भी यू हैव ये ब्रोंकोपल्मोनरी प्लेक्सस होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इन द हाइलम, राइट। तो ये रीनल प्लेक्सस भी बना लेते हैं हाइलम ऑफ द किडनीज के लेवल पे। तो क्या है कि विसरा पे भी ये प्लेक्सस बनाते हैं, तो ये फेरिंजियल ब्रांचेस हैं, दे विल फॉर्म अ प्लेक्सस अराउंड द फेरिंग्स। फिर ये बहुत डिटेल में पढ़ाया गया था, इस पे क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट, ठीक। अब हार्ट में जो नर्व सप्लाई है वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक कंबाइंड है। पैरासिम्पैथेटिक इज थ्रू वेगस एंड इट्स ब्रांच कौन सी? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। वो तुम्हें पढ़ाया गया था, क्वेश्चन आता है इसमें नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट पे।
सिंपैथेटिक सप्लाई जो हार्ट में है वो तीनों गैंग्लियन से है, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन. The three ganglion, all of them, they give a branch. There were two plexuses. One was superficial cardiac plexus, another was a deep cardiac plexus. सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस कहाँ पे पाया जाता है? ये भी आर्च ऑफ ऑर्टा के ऊपर ब्लेंड कर जाता है प्लेक्सस, and under the arch of aorta you'll find this plexus, superficial cardiac plexus. Deep cardiac plexus कहाँ पाया जाता है? It is formed over the carina, यानी कि ये जो बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया है उसके ऊपर पाएगा. और लेवल कोई बता देगा ये क्या है? लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल. लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल क्या होता है? T4 T5. ठीक है, तो T4 T5 पे ट्रैकिया डिवाइड करता है, तो वहां पे यू विल फाइंड डीप कार्डियक प्लेक्सस, एंड उसके जस्ट ऊपर बिलो द आर्च ऑफ ऑर्टा यू विल फाइंड सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस. ठीक, अब बात आ रही है कि सिंपैथेटिक कंट्रीब्यूशन क्या है बोथ द साइड्स. ये बहुत बार रटाया गया है तुमको कि सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस में सिंपैथेटिक से जो लेफ्ट साइड से आ रही है, दैट इज लेफ्ट सुपीरियर कार्डियक ब्रांच. ठीक है, ये मिडिल कार्डियक ब्रांच हो गई, लेफ्ट इंफीरियर कार्डियक ब्रांच. इसी तरह से राइट में तीन गैंग्लियन है, तो राइट सुपीरियर कार्डियक ब्रांच, right middle cardiac branch, right inferior cardiac branch. So all the three ganglion from both the sides, they give a sympathetic branch to the cardiac plexus. But remember, only the left superior reaches to the superficial cardiac plexus. Rest all the nerves from the three ganglion both the sides reach to the deep cardiac plexus except the left superior. ठीक, तो समझ में आ रही है बात? ओके, ये कार्डियक प्लेक्सस बन गया. तो इस तरह से तुमने इसकी सारी ब्रांचेस देख ली. ठीक, अब हम थोड़ा सा इस पे नीचे पहुंचते हैं मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन पे. मिडिल सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन जो होता है, मैंने बताया ये कभी कभार बहुत बीडेड सा हो जाता है, यानी कि इसमें रिजेस पड़ जाते हैं. कभी कभार ये एब्सेंट होता है, एंड अगर होता है तो इट इज द स्मॉलेस्ट गैंग्लियन. क्योंकि इट्स फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 5 and 6, तो इसमें दे विल फाइंड 2 गिरिरामाई कम्युनिकेंटिस, और ये अपनी ही नर्व 6 and 7 सर्वाइकल नर्व्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी. ठीक है, टू द बॉडी वॉल एंड मसल्स. बाकी जो विसरल ब्रांचेस हैं उसमें देखो एक थायराइडल ब्रांच जा रही है. ठीक है, तो ये किसके था जाएगी? याद रखना, ये वाली जो चलेगी, दे हैव नॉट ड्रॉन द आर्टरी हियर. This thyroidal branch will actually climb upon the inferior thyroidal artery. अच्छे से याद कर लेना, inferior thyroidal artery is a branch of thyrocervical trunk, which is a branch of subclavian artery. ठीक है, तो ये inferior thyroidal artery के थ्रू ट्रंक जाएगा और थायराइड को सप्लाई करेगा. ठीक, एज वेल एज पैराथायराइड को भी सप्लाई करेगा along the inferior thyroidal artery, and it will supply thyroid and parathyroid as well. फिर एक एक ब्रांच जाएगी. Now this branch will reach to the trachea as well as esophagus to form a plexus around trachea and esophagus के ऊपर ये ऑटोनोमिक सप्लाई पहुंच जाएगी इसकी. ठीक है, और उसके अलावा ये मिडिल कार्डियक नर्व तो तुम्हें पता ही है, जो कि डीप कार्डियक प्लेक्सस में जाएंगे फ्रॉम बोथ द साइड्स. अब बात आती है कम्युनिकेशन ऑफ द गैंग्लियन. राइट, सुपीरियर इज कनेक्टेड टू द मिडिल बाय दिस कंटिन्यूटी ऑफ द चेन. राइट, बट मिडिल इज कंटिन्यूअस विद द इंफीरियर सर्वाइकल. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन इज कम्युनिकेटेड टू द इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन विद द टू रूट्स. One is in the same continuity and the other winds around the subclavian artery like a loop, and a loop in anatomy is called ansa. Ansa वर्ड तुम पहले ही सुन चुके हो. वो कहाँ सुना था? ansa cervicalis में पढ़ा होगा. राइट, 12th and C1 C2 वाला जो इन्वॉल्वमेंट था, 12th cranial C1 वाला जो इन्वॉल्वमेंट था, yes, तो वो सुप्रा हायोइड मसल्स के लिए था नर्व सप्लाई. So ansa is a loop, and loop you are seeing is this also. Now this is ansa subclavia. Ansa subclavia is a communicating channel between the middle and inferior cervical sympathetic ganglion. But it is not the only communication. याद रखना, अगर ये टूट भी जाएगा, then also you have still a communication. ठीक है, तो ये दो secondary communication है. You can say like one is the direct communication, and other winds around the subclavian like this. And subclavian, it is arching over the first rib.
तो ये फर्स्ट रिब के ऊपर आर्च करती है, वहीं पे ये इसको लूप कर जाती है, ठीक। अब देखते हैं कि इसकी ब्रांचेस क्या हैं। अगेन बिकॉज ये जो सिंपैथिक गैंग्लियन थी सर्वाइकल रीजन में, फ्रॉम द 7th and 8th गैंग्लियन जो थे, दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द इंफीरियर गैंग्लियन, और ये पाया जाएगा 8th सर्वाइकल नर्व के आगे रखा हुआ। ये यू कैन से कि वर्टिब्रल आर्टरी के फर्स्ट पार्ट के पीछे पाया जाएगा। और अगर T1, if T1 joins this, then it becomes a stellate ganglion and it will be found anterior to the neck of first rib, ठीक। तो ये तो इसकी ग्रे रामाई कम्युनिकेंटिस के थ्रू अपनी सर्वाइकल नर्व C7 C8 से कंटिन्यू करेगा, और लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस के साथ साथ ये रेडियल नर्व, अल्नर नर्व में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वहां पे अपर लिम्ब की वैसोमोटर सप्लाई के लिए। विसरल ब्रांचेस पे देखते हैं, तो ये वर्टिब्रल आर्टरी के साथ भी प्लेक्सस बना रही है, ठीक है। तो वर्टिब्रल आर्टरी के साथ भी असेंड करेगी इसके विसरल कम्युनिकेशंस। Then it will also have this inferior cardiac branch from both the side reaching to the deep cardiac plexus, and it will be continuous to the T1, or you can say the lower sympathetic chain, both the sides, ठीक। तो इस तरह से क्या है सिंपैथेटिक चेन, पहले तो मैं डिफाइन करनी होगी क्या। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि सिंपैथेटिक सर्वाइकल चेन इज नॉट अटैच्ड विद व्हाइट रामाई कम्युनिकेंटिस, इट हैज ओनली द ग्रे रामाई कम्युनिकेंटिस। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, व्हाइट क्यों नहीं होता, क्योंकि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ही नहीं होते सर्वाइकल रीजन में, गॉट इट। और थोरैकोलम्बर आउटफ्लो होता है, इसलिए सर्वाइकल में होता ही नहीं। लेकिन चूंकि फाइबर्स इमर्ज करेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक, इसलिए ग्रे रामाई कम्युनिकेंटिस होते हैं, ओके। और फिर ये मीडियल विसरल ब्रांचेस है, सारी विसरल ब्रांचेस बतानी। थोड़ा सा सुपीरियर इसलिए इंपॉर्टेंट पड़ता है क्योंकि इसमें क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन के चारों के नाम आते हैं, किसके साथ जुड़ रही है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि एक और बात इंपॉर्टेंट है जो हमने बताई नहीं अभी तक, कि इस पूरे नेक रीजन में जो सिंपैथेटिक चेन है, इसमें सिंपैथेटिक फाइबर्स आए कहां से, आए तो नीचे से ना, T1 to L2 से। तो T1 to L2 में याद रखना, ओनली द अपर 4 thoracic segments T1 to T4 contribute to the cervical part of sympathetic chain। इस पूरे में नीचे से ऊपर तक जो फाइबर्स आए हैं वो T1 to T4 आए, ठीक है। T1 to T4 ही फाइबर्स हैं जो कि रीच दे एसेंड अप इन द सर्वाइकल पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक चेन, ठीक है। और तुम लोग को मैंने दिखाया भी था कि जब हम पोस्टीरियर मीडियस्टिनम की बात करते हैं, तो पोस्टीरियर मीडियस्टिनम में वन ऑफ द कंटेंट्स इज द स्प्लैंक्निक नर्व्स, राइट। सो वी हैव बीडेड चेन, रिमेंबर 5 6 7 8 9, right? The gray ramen communicant test of 5 6 7 8 9 sympathetic ganglion join to form which nerve? Greater splanchnic nerve. 10 and 11 will join to form lesser splanchnic nerve. T12 will continue as least or renal nerve कहते हैं, ठीक है। And these greater and lesser splanchnic nerve, they'll emerge out because ये abdomen के लिए है ना, so they will emerge out through the thoracic cavity by which opening in the diaphragm? How do these greater, lesser and least splanchnic nerves emerge out of the diaphragm? Yes, through by piercing the right and left crus of the diaphragm, ठीक है। तो ये अपर 4 सेगमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। T1 to T4 ये वो सेगमेंट्स हैं T1 to T4 जो ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। बाकी T5 से ऑनवर्ड्स आई टोल्ड यू वो नीचे चले जाते हैं, स्प्लैंक्निक नर्व्स बनाते हैं एब्डोमेन के लिए। T1 to T4 अपने थोरैसिक रीजन में तो है ही है, लंग्स और हार्ट के लिए तो है ही है, लेकिन सर्वाइकल और अपर हेड एंड नेक और अपर लिम्ब के लिए भी T1 to T4 thoracic sympathetic outflow reaches the cervical sympathetic trunk,
ठीक है, ये सब बातें समझ में आ गई। और अगर ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट गैंग्लियन कौन है, तो ये है। स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो मिडिल है। अब एक बात है, यू कैन सी देयर आर, यू नो, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। देयर आर 3 कार्डियक नर्व्स फ्रॉम द, यानी कि सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर सिंपैथेटिक कार्डियक नर्व्स होती हैं फ्रॉम द 3 गैंग्लियन। पूछा गया है कि लार्जेस्ट कौन सी होती है, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। देखो भाई, लार्जेस्ट लोग यही सोचेंगे कि ये ऊपर से आती है भाई, सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथिक गैंग्लियन से, और कॉमन स्टेशन है तीनों का। कॉमन स्टेशन क्या है, या तो डीप या सुपरफिशियल सर्वाइकल सिंपैथिक कार्डियक प्लेक्सस। ये कहाँ है, ये एक्सटर्नल एंगल के पीछे है, सुपीरियर मीडियस्टर्नम पे है। तो लार्जेस्ट सिंपैथेटिक कार्डियक नर्व कौन सी है, याद रखना, मिडिल है। मिडिल है, इट इज नॉट द सुपीरियर, ठीक, it is not the superior, it is the middle one, which is the largest cardiac largest sympathetic cardiac nerve, middle one। क्योंकि बार बार मैंने रिमाइंड कराया है, याद रखना, एनाटमी में यू टॉक अबाउट द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट में फर्क होता है, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट, ठीक है, लेकिन लार्जेस्ट ये रखना पड़ेगा कि मिडिल वाला जो होता है, मिडिल का सिंपैथेटिक कार्डियक नर्व फ्रॉम द मिडिल गैंग्लियन इज द लार्जेस्ट, ठीक। तो अब तुमको पूरा जिस्ट हमने समझा दिया है, जिन्होंने ध्यान से सुना है इनको समझ में आ गया होगा। और एक रीडिंग लगाना बुक से, बाकी विल जस्ट गिव अ रीडिंग हियर आल्सो। Let's read it. Now, the cervical part of the right and left sympathetic trunks are situated on each side of the cervical part of the vertebral column, behind the carotid sheath and in front of the prevertebral। यानी immediate anterior and posterior relation क्या है sympathetic chain का, तुम लोगों ने डायग्राम भी देख रखा है कैरोटिड शीथ का, राइट। तो कैरोटिड शीथ के जस्ट पोस्टीरियरली क्या पाया जाता है, सिंपैथेटिक चेन। एंड सिंपैथेटिक चेन के पोस्टीरियर रिलेशन में क्या आएगा, प्री वर्टिब्रल फाशिया। ये इमीडिएट रिलेशन है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। नाउ लेट्स सी फॉर्मेशन। There are no white rami communicantis in the neck, ठीक है। एंड द रीजन यू नो, बिकॉज प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर सीन ओनली इन द रीजन ऑफ T1 to L2, so you don't find white rami communicantis in this region। and this part of the trunk is commonly formed by the fibers which emerge out from segments T1 to T4, ठीक है। T1 to T4 वाले हेड नेक में पहुंचते हैं, सर्वाइकल रीजन में, ठीक। और T5 ऑनवर्ड्स अभी बताया था, वो ग्रेटर, लेसर और लीस्ट प्लैंक्टनिक नर्व बनाते हैं विस्ल, और वो चले जाते हैं एब्डोमेन में, ठीक। तो T1 to T4 will supply the thoracic viscera, the head and neck viscera and the upper limb viscera, ठीक। segments of T4 of spinal cord and then ascend into the neck, ये neck में आ जाते हैं। अब ये तुम्हें यू नो डायग्राम वैसे भी पढ़ाया गया है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ डीप सर्वाइकल फाशिया है। सो यू सीन इन्वेस्टिंग लेयर, ये प्री ट्रैकियल लेयर है, ये प्री वर्टिब्रल लेयर है, और ये कैरोटिड शीथ्स है। तो एग्जैक्ट लोकेशन सिंपैथेटिक ट्रंक का कहाँ है, ये है, right? That means it is lying just behind the carotid sheath and it is just lying anterior to the prevertebral fascia, ठीक। कैरोटिड शीथ में भी क्या होता है, इसके आगे जस्ट वेगस और इंटरनल कैरोटिड या कॉमन कैरोटिड, ठीक। लोअर पार्ट में इफ आई टॉक अबाउट लोअर पार्ट में, जहां पे हम बात करेंगे मिडिल सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन की, वहां पे ये आर्टरी आ जाएगी सामने, एंड दिस इज इंफीरियर थायराइडल आर्टरी। ये मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन के एंटी रिलेशन में आ जाएगी, क्योंकि इसके साथ थायराइडल ब्रांचेस जाएंगी, गॉट इट, ओके। और नीचे जाएंगे इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन के लेवल पे, तो इसके आगे आ जाएगी वर्टिब्रल आर्टरी का फर्स्ट पार्ट और सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। वहां पे एंसा सबक्लेविया वाला लूप भी बन जाएगा। अच्छा, तो अब इस डायग्राम में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, यू नो मिड लाइन में स्ट्रक्चर में अगर देखें तो बिहाइंड द इसोफेगस इट इज द प्रीवर्टिब्रल और बक्कोफेरिंजियल फाशिया फ्यूज्ड हो जाता है। दोनों साइड में यू हैव रेट्रोफेरिंजियल लिम्फ नोड्स होते हैं, बीच में ट्रकिया है, ट्रकिया के एंटीरियर यू फाइंड इज द थायराइड, थायराइड के अंदर क्या होता है, पैराथायराइड पोस्टरली होता है। ये सब चीजें देता है ब्लड सप्लाई। स्पाइन, नाउ दिस रीजन, दिस इज sternocleidomastoid and this is trapezius, both are invested in the investing layer। the space in between this
is called the posterior triangle. The roof of the posterior triangle is this, and this spinal accessory nerve is one of the major content of the posterior triangle. Okay. Phrenic nerve की अगर देखें तो बात, phrenic nerve is a branch from cervical plexus, but यहाँ important point है, ध्यान रखना कि phrenic nerve is within the prevertebral fascia. ठीक है, it is covered by prevertebral fascia. तो फ्रीनिक नर्व प्रीवर्टिबल फाशिया को पियर्स करके, कहां पे पियर्स करके कैसे इंटर करेगी थोरैक्स में? रिमेंबर दैट इट पियर्सेस द prevertebral fascia anterior to the scalenus anterior. It actually descends on the scalenus anterior muscle, और scalenus anterior के ऊपर descend करेगी, then it pierces the prevertebral fascia to enter into the thorax. Which again some problem, are you all connected? Connection क्यों हट गया? कनेक्टेड हो कि नहीं, दिख ही नहीं रहा. I can't see your chat box. ओके, हट जाता है. हाँ, तो फ्रीनिक नर्व जो है ये प्रीवर्टेबल फाशिया के कंटेंट्स में है. एंड इफ यू रिमेंबर ये स्क्लेनियस एंटीरियर मसल, राइट? स्क्लेनियस एंटीरियर कौन सी मसल थी? जो फर्स्ट ट्रिप पे लग रही थी और सबक्लेवियन आर्टरी को 3 पार्ट्स पे डिवाइड कर रही थी. स्क्लेनियस एंटीरियर मसल, ये देखो स्क्लेनियस एंटीरियर, स्क्लेनियस एंटीरियर के आगे ही चलती है फ्रीनिक नर्व और परफोरेट करती है किसको? प्रीवर्टेबल फाशिया को, और इट विल एंटर इनटू द थोरैक्स अलोंग विद व्हिच आर्टरी? Which artery accompanies phrenic nerve? Can you tell me in the thorax? Which artery accompanies phrenic nerve in the thorax? Again, the chat window has gone. I think problem हो जाती है. हाँ, which artery accompanies phrenic nerve in the thorax? It is this artery accompanies phrenic nerve right from the neck, and the artery is pericardiophrenik artery. Pericardiophrenik artery accompanies phrenic nerve, and pericardiophrenik artery is a branch of internal thoracic artery given out in the neck. Anyways, तो रिवीजन कराते रहता हूं मैं बीच में. Now this is carotid sheath, right? Carotid sheath encloses, remember, internal carotid medially, internal jugular laterally, and posteriorly is the vagus, right? ये है. तो what lies anteriorly, it is the ansa cervicalis बताया था. ये relation, let me tell you, एक बार नीट पीजी में क्वेश्चन आ चुका है regarding carotid sheath relations में, इसलिए हम बार बार ध्यान देते हैं. तो on the anterior wall of the carotid sheath you'll find the 2 roots of ansa cervicalis embedded to this, and what lies just immediate behind is the sympathetic chain. ठीक है, अब ये कट सेक्शन में देख लेते हैं एक बार. You have the pre infrahyoid muscles, right? तो infrahyoid muscles में ये तो स्टेनोक्लीडोमास्टोइड हो गई बोथ द साइड. ठीक है, जो बीच में स्पेस बची इन दोनों स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के, व्हाट स्पेस इज दैट? दैट इज द anterior triangle of the neck, right? And what space lies behind the posterior border here? That is posterior triangle of the neck. अब ये प्रीवर्टिब्रल मसल्स में क्या थी? स्टर्नोहायोइड, ओमोहायोइड ये स्कैपुला की तरफ से आ रही है तो ये लेटरल होगी, स्टर्नोहायोइड सुपरफिशियल होगी, एंड द अदर वन इज स्टर्नोथायरॉइड, ये डीपर होगी. मिडलाइन विसरा में क्या आएगा? थायराइड, ट्रेकिया, ईसोफेगस, एंड व्हाट लाइज बिहाइंड ईसोफेगस इज बक्कोफेरिंजियल फाशिया, एंड उसके पीछे प्रीवर्टिब्रल फाशिया, और फेरिंग्स के पीछे ये दोनों रेट्रोफेरिंजियल लिम्फ नोड्स. अच्छा, अब देखो, capsule of the thyroid gland is false capsule, the outer one. The false capsule is formed by the condensation of pretracheal fascia, and the thickenings here you can see, thickenings posteromedially, this forms the ligament of Berry. The ligament of Berry is formed by the modification of pretracheal fascia. ठीक है, ये पूछा गया था अभी तुम लोगों से कहीं. It's a modification of pretracheal fascia. Then
ट्रेकिया के आइदर साइड जो है वेगस होती है और वेगस फॉर्म्स अ प्लेक्सस अराउंड द ट्रेकिया, इट डिसेंड्स डाउन अलोंग विद ट्रेकिया, लेकिन ट्रेकिया तो खत्म हो जाता है T4 पे, उसके बाद इट विल कंटिन्यू एंड डिसेंड अलोंग ईसोफेगस। याद रखना, वेगस इमर्जेस इन द एब्डोमेन बाय पियर्सिंग बाय पासिंग थ्रू व्हिच ओपनिंग इन द डायफ्राम? वेगस, हाउ डज वेगस enters in the abdomen? Yes, very good. तो आकाश, तो ईसोफेगस, ईसोफेजियल ओपनिंग यानी ईसोफेगस के अराउंड वेगस, जब तक ट्रकिया है, याद रखना, नेक से लेकर के सुपीरियर मीडियस्टनम तक वेगस डिसेंड्स डाउन अलोंग विद ट्रकिया, इसको पकड़ के चलती है, इसके अलाउंड प्लेक्सस बना लेती है ट्रकिया पे, और वहां पे डीप कार्डिक प्लेक्सस भी पार्टिसिपेट करती है ट्रकिया में। बट T4 के बाद तो केराइना आ जाता है, केराइना से इट गोज प्राइमरी ब्रोंकस, लेकिन डाउन इन द पोस्टीरियर मीडियस्टनम esophagus के along it will descend down vagus and ultimately it will reach into the abdomen through the esophageal openings. Okay, now let's see both the sides क्या है, carotid sheath है, इसमें medially you have internal carotid और common carotid, internal jugular laterally होती है, याद रखना। artery is more, you can say, important vital structure, it's like more medial, more protection, more safety, and vagus lies in posteriorly. ये actually vagus मैं बोल रहा हूँ, it's the retro recurrent laryngeal nerve, it's a branch of vagus, like, और ये इसलिए यहाँ पे सेंड करें क्योंकि इसको सप्लाई करना है larynx को, intrinsic muscle to the larynx, and it is the nerve of which branchial arch? Recurrent laryngeal nerve is a branch of is a nerve of which branchial arch? It's a nerve of sixth, yes, sixth branchial arch. So it is actually, ये close by आ जाती है किसके, ट्रैकिया के, और ट्रैकिया के पास ले आ जाती है क्योंकि इसको सप्लाई करनी लैरिंग्स की इंट्रिंसिक मसल्स को। एंड लेट मी टेल यू, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग थायराइडेक्टमी, that where you going to ligate the superior thyroidal artery while thyroidectomy, तो उसका आंसर क्या होगा? It's ligated very close to the, you know, close to the thyroid gland, ठीक है, क्योंकि उसमें सुपीरियर लैरिंजियल नर्व जो होती है वो थोड़ा सा दूर हो जाती है व्हेन इट कम्स क्लोज टू द ग्लैंड। अदरवाइज इफ यू नो अवे फ्रॉम द ग्लैंड लाइगेट करेंगे तो द चांसेस ऑफ इंजरी और लाइगेटिंग द सुपीरियर लैरिंजियल नर्व एज वेल। लेकिन फर्क यहाँ पे ये है कि अगर हम इंफीरियर थायराइडल आर्टरी को लाइगेट करेंगे, बुक में पढ़ना अच्छे से, इंफीरियर थायराइडल आर्टरी को लाइगेट करेंगे तो वी विल लाइगेट दिस आर्टरी अवे फ्रॉम द ग्लैंड। यस, यही चीज इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जानवी त्रिपाठी सुपीरियर, हाँ, सो yes, अब the better option is either you ligate the only the glandular branches, अगर बहुत ज्यादा competent surgeon है तो कर पाएगा, अगर नया नवेला सर्जन है तो वो नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि inferior thyroid artery को you ligate away from the thyroid gland to avoid ligating the recurrent laryngeal nerve जो कि so closely approximated to the thyroid gland, ठीक है। तो इंफीरियर वाले को अवे लाइगेट करेंगे एंड सुपीरियर थायराइडल आर्टरी को क्लोज टू द ग्लैंड लाइगेट करेंगे, ठीक है। अब देखो फ्रीनिक नर्व जो है ये प्रीवर्टिब्रल फाशिया के अंदर रहती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ये कब बाहर निकलती हैं फ्रीनिक नर्व? जब ये फर्स्ट स्ट्रिप के ऊपर पहुंचेंगी जहां पे स्क्लेनियस एंटीरियर इंसर्ट करती है, स्क्लेनाई ट्यूबरकुलम, वहां पे परफोरेट करके फ्रीनिक नर्व बाहर आती है। रिलेशंस की बात कर रहे हैं, देखो फटाफट रख लेंगे। नाउ वी टॉकिंग अबाउट रिलेशंस ऑफ द एंटायर, यू नो, नीचे से ऊपर तक सर्वाइकल सिंपैथेटिक ट्रंक की बात कर रहे हैं। तो रिलेशंस की what lies anterior to this trunk is internal carotid, common carotid, internal carotid in the upper portion, common carotid in the lower portion. Carotid sheath is the immediate anterior relation of the cervical sympathetic chain, and inferior thyroid artery in the at the level of middle cervical ganglion. Posterior relation में क्या है? Prevertebral fascia will be like behind this sympathetic chain, and what will be in what will be in deep relation to the prevertebral fascia के अंदर क्या होगा? Longus capitis, longus cervicis, these are the prevertebral muscles. और फिर उसके भी अंदर देखेंगे तो क्या मिलेगा? ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द लोअर 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दी मैंने आज कि देयर आर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, ठीक है। अब इस 7 में कोई ऐसी स्ट्रक्चर है जो सिर्फ अपर 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे से रिलेटेड है, वो क्या थी? वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी passes through the foramen transversarium of upper 6 cervical vertebrae, याद रखना।
लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो कि लोअर 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे से रिलेटेड है, वो क्या है? सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन। याद रखना, सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन इज रिलेटेड टू द लोअर 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे। सिर्फ एटलस को इसलिए क्योंकि एटलस के ट्रांसवर्स प्रोसेस के नीचे पाया जाता है सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन। ठीक है, तो ये तुमने अच्छे से इसके रिलेशंस मैंने सब तुम्हें डायग्राम में दिखा दिए हैं। आगे पीछे दाएं बाएं रिलेशंस, पोस्टीरियर इंफीरियर सब तुम्हें बता दिए हैं। और ये थोड़ा न्यू एडिशन में तुम्हारे डायग्राम में थोड़ा सा और बेटर कर दिया है। यू कैन सी दिस इज द सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन व्हिच इज 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ अपर 4 सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन 1 2 3 4 जुड़ जाने से बनते हैं। एंड इट लाइज अपोजिट टू C2 C3 वर्टिब्रल लेवल एंड इट कम्युनिकेट्स, राइट, ये भी मैंने बताया था कौन कौन से उससे कम्युनिकेशन क्रेनियल नर्व से इसके। इट इज communicates to the 9th 10th 11th and 12th cranial nerve से communications हैं इसके, क्योंकि सारे पैरोटिड ग्लैंड्स को सप्लाई करने हैं, राइट, सॉरी, जितना भी म्यूकोजल है वैसोमोटर सप्लाई हेड एंड नेक में उसके लिए सप्लाई करना है, तो ये 4 cranial nerve जाकर 9th 10th 11th 12th को सप्लाई करेगी। एंड इट विल क्लाइम अपॉन द एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व एंड रिकरेंट लेरिंजियल नर्व के साथ भी ये सप्लाई करती है। ठीक है, सिंपैथेटिक फाइबर्स ये क्लाइम करते हैं। नर्व्स के साथ भी कम्युनिकेशन है। वेसल्स के साथ में क्या है, देखो ये जो ऊपर की तरफ से निकल रही है, दिस इज इंटरनल कैरोटिड नर्व, क्लाइम्स अराउंड इंटरनल कैरोटिड एक्चुअली इज एंटीरियर रिलेशन टू दिस गैंग्लियन एंड इट विल क्लाइम अपॉन। उसके बाद तुम्हें पता है इंटरनल कैरोटिड से 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, एक डीप पेट्रोसल नर्व निकलती है जो कि टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन से रिलेटेड है, और दूसरी ऑफ्थैल्मिक गैंग्लियन आर्टरी के अलोंग प्लेक्सस बनाती है, वो किस में जा जिसके थ्रू जाती है? सीलरी गैंग्लियन के थ्रू, और वो कहलाती है डायलेटर पिपिली। ओके, तो फॉर डायलेटेशन ऑफ पीपल लॉन्ग सिलरी नर्व्स भी होती हैं, एंड फॉर सिलरी गैंग्लियन एंड डीप पेट्रोसल नर्व टू टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन के थ्रू वैसोमोटर सप्लाई ऑफ द फेस के लिए। फिर ये है एक ब्रांच टू द एक्सटर्नल कैरोटिड के अलॉन्ग जाएंगी, इसमें 2 ब्रांचेस निकलेंगी, एक निकलेगी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के थ्रू, वो जाएगी ओटिक गैंग्लियन में, और एक फेशियल आर्टरी के ऊपर क्लाइम करते हुए पहुंचेगी सबमैंडिबुलर गैंग्लियन में। इन शॉर्ट इट विल सप्लाई द वैसोमोटर सप्लाई टू द all the parotid, all the salivary glands। ठीक, फिर ये मैंने बताया था the pharyngeal branches जो होती हैं they form a plexus around the pharynx। ठीक है, ऑटोनॉमिक सप्लाई टू द सिंपैथेटिक सप्लाई टू द फेरिंक्स के लिए। ठीक, फिर ये कार्डियक ब्रांचेस दिख रहे हैं तुम्हें सुपरफिशियल एंड डीप कार्डियक प्लेक्सस में। जो लेफ्ट वाली है दैट इज सप्लाई द सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस, बाकी सारी लेफ्ट एंड राइट जो सप्लाई द डीप कार्डियक प्लेक्सस। और लोकेशन कहाँ होती है वही बताया था। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिडिल सर्वाइकल प्लेक्सस की बात कर रहे हैं। मिडिल में 2 ग्रे रामाई कम्युनिकेंटी से स्पाइनल नर्व 5 एंड C6 से जुड़ जाते हैं, एंड जो इसकी जो विसरल ब्रांच है दैट रीचेस द थायराइड, थायराइडल ब्रांच होती है दैट रन्स अलोंग द इंफीरियर थायराइडल आर्टरी। ठीक है, इंफीरियर थायराइडल आर्टरी के साथ जाएगी, थायराइड एंड पैराथायराइड की वैसोमोटर सप्लाई करेगी। एंड इट विल आल्सो गिव ट्रैकियल एंड ईसोफेजियल ब्रांचेस। ठीक है, मिडिल वाले में। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या था, ये मिडिल वाले में इट इज द स्मॉलेस्ट गैंग्लियन, it may or may not be present, and sometimes it might be seen as a beaded structure, 2 to 3 parts में segments में divided भी हो सकता है। ठीक, और ये C6 वर्टिब्रल लेवल के अपोजिट होता है, ये C2 C3 पे अपोजिट होता है, ये C6 एंड C6 का लेवल क्या होता है? क्रिकोइड कार्टिलेज का लेवल होता है। ठीक है, अच्छा, अब इंफीरियर वाली भी एक जल्दी से देख ले। इंफीरियर वाला जो होता है ये पाया जाएगा 8th सर्वाइकल नर्व के सामने पाया जाएगा, या तो फर्स्ट स्ट्रिप के नेक के ऊपर पाया जाएगा। ये 7 और 8 के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। अगर इसमें T1 जुड़ जाता है तो इसको कहते हैं स्टिलेट गैंग्लियन। तो फिर ये कहाँ पाया जाएगा? इन फ्रंट ऑफ द नेक ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप पाया जाएगा। ठीक, अगर सिर्फ इंफीरियर सर्वाइकल C8 C7 C8 है तो फिर इट विल फॉर्म in front of the ramus of C8 और below the transverse process of C7 इसकी लोकेशन है। बाकी इसकी जो है एक कम्युनिकेशन डायरेक्ट है मिडिल से, एक लूप के थ्रू है, एंसा सबक्लेविया कहते हैं। एंड रिमेंबर ये जो
विसरल ब्रांचेस ऑटोनोमिक फाइबर्स हैं, ये सबक्लेवियन को भी जा रही हैं, वर्टिब्रल आर्टरी को भी जा रही हैं, और ये जो एंसा सबक्लेविया है इसके थ्रू भी सप्लाई मिलती है सबक्लेवियन आर्टरी को, ठीक है। तो और अमंग द थ्री कार्डियक ब्रांचेस द लार्जेस्ट कार्डियक सिंपैथेटिक नर्व इज द मिडिल कार्डियक सिंपैथेटिक नर्व, ठीक। तो गैंग्लियन की बात करें, थियोरेटिकली देयर शुड बी आइडियली 8 सिंपैथेटिक गैंग्लियन होने चाहिए करस्पॉन्डिंग टू द 8 सर्वाइकल नर्व्स, बट ड्यू टू फ्यूजन देयर आर ओनली 3 गैंग्लियन, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर। ये तुमको तीनों गैंग्लियन दिखा दिए और अच्छे से इनकी ब्रांचेस भी तुम्हें समझा दी गई हैं और एक्सटेंड बताए। सुपीरियर सर्वाइकल, ये देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, आई थिंक बुक में तुम्हारे न्यू एडिशन में नहीं है। सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन एक्सटेंड क्या है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द एटलस, राइट, मैंने बताया था एटलस का ट्रांसवर्स प्रोसेस टू द टिप ऑफ द ग्रेटर कॉर्नर ऑफ द हाइड बोन। तो ग्रेटर कॉर्नर ऑफ द हाइड बोन की बात हो रही है, यानी कि ये T3 लेवल पे बात हो रही है, ठीक है। तो ग्रेटर कॉर्नर ऑफ द हाइड, अपर लेवल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज इज C4 और हाइड इज C3। तो ये जो ग्रेटर कॉर्नर है C3 पे आता है, ठीक है। तो ये इसका एक्सटेंट हो गया। मिडिल सर्वाइकल लाइज लेवल ऑफ क्रीकॉइड कार्टिलेज यानी C6 वर्टिब्रल लेवल। इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन कहां पाया जाएगा? एक दूसरा तरीका ये भी है, एट 3 सेंटीमीटर अबव द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, यानी कि कई तरह के हमने समझा रखे थे इंफीरियर सर्वाइकल, या तो ये लिखा जाएगा कि 8th सर्वाइकल नर्व के सामने पाया जाता है, वो भी सही है, या ये लिख सकते हैं 7th सर्वाइकल वर्टिब्रे की ट्रांसवर्स प्रोसेस के नीचे पाया जाता है, दैट आल्सो इज करेक्ट। या ये थर्ड पॉइंट इज दैट इट इज फाउंड 3 सेंटीमीटर अबव द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, देन आल्सो इट इज करेक्ट। अगर इसमें T1 जुड़ गया, स्टिलेट गैंग्लियन बन गया, तब कहां पाया जाएगा? एंटीरियर टू द नेक ऑफ फर्स्ट रिब, ठीक। तो ये इसकी लोकेशन है, तीनों गैंग्लियन की लोकेशन। गॉट इट? ये सुपीरियर वाला है 2.5 सेंटीमीटर, मिडिल इज द इंफीरियर मोस्ट। मिडिल ये देख रहे हो, इसका लोअर एंड कहाँ आ रहा है? ग्रेटर कॉर्नर ऑफ द हाइड बोन तक की लोअर एंड आ रहा है इसका, अपर एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द एटलस तक जा रहा है। ये है क्रिकॉइड कार्टिलेज के अपोजिट मिडिल वाला, और इंफीरियर वाला 3 सेंटीमीटर अबव द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक। बाकी ये डायग्राम्स हैं, इसमें यू कैन सी ये नेकेड आई व्यू में दिखेगा, ठीक है। लॉन्गस कुलाई और लॉन्गस कैपिटिस के ऊपर रखा है प्रीवर्टिब्रल मसल्स पे। दिस इज द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन एंड दिस इज द कनेक्टिंग चेन, दिस इज द मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन, बहुत छोटा सा है, और ये वर्टिब्रे कौन सा होगा? 6th वर्टिब्रे होगा। दिस इज द इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, और ये T7 7 सर्वाइकल के नीचे होगा, 8th उसके सामने होगा, रूट के सर्वाइकल नर्व के, ठीक। यहाँ पे भी देख लो, ये सुपीरियर सर्वाइकल ग्रॉस में दिखता कैसा है, तो लॉन्गस कैपिटिस के ऊपर रखा हुआ है सुपीरियर सर्वाइकल, इट इज लॉन्ग इनफ, 2.8 सेंटीमीटर है। दिस इज द सिंपैथेटिक ट्रंक, और मिडिल कभी मिले या ना मिले, नॉट श्योर, बट यू कैन सी कि ये फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन है, ये थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन है। दिस मसल इज स्क्लेनियस एंटीरियर, तो ये फर्स्ट पार्ट को लूप करती है, याद करना, एंसा सबक्लेविया loops around the first part of subclavian artery। ये है aberrant, कभी कभार aberrant ganglion भी बन सकते हैं। superior cervical ganglion shape the largest of 3 ganglion है। स्पिंडल देखो, अगर ढंग से पढ़ लिया तो आगे सारी चीजें स्मूथ हो जाती है, सिर्फ रीडिंग डालना रह जाता है। लार्जेस्ट ऑफ द 3 गैंग्लियन है, स्पिंडल शेपेड है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सिचुएशन कहाँ होती है, फॉर्मेशन कहाँ होता है? जस्ट बिलो द स्कल होता है, अपोजिट द सेकंड एंड थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रे, बता चुके हैं। बिहाइंड द कैरोटिड शीथ एंड इन फ्रंट ऑफ द प्रीवर्टिब्रल फास्cia कवर्ड which is covering longest capitis, सब बता दिया। formed by fusion of upper 4 cervical ganglion, you know that। communication किससे करती है? cranial nerves कौन कौन सी 9, 10, 11, 12 से communicate करेगी, and external recurrent and recurrent laryngeal nerve से भी communication होगा इसका superior cervical ganglion, क्योंकि इसको larynx को और इसको सप्लाई करना होता है थायराइड उसको फेरिंक्स के लिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन।
सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन की ब्रांचेस में क्या है, द ग्रे रमाई कम्युनिकेंटिस कितने होंगे, 4 होंगे, तो वो अपनी चारों सर्वाइकल नर्व्स के साथ निकलेंगे। इंटरनल कैरोटिड नर्व फिर बताया था, इंटरनल कैरोटिड नर्व क्या करती है इसमें, अराइजेस फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द गैंग्लियन एंड फॉर्म्स अ plexus around the internal carotid artery, and this plexus supplies the dilator pupillary and some fibers from the deep petrosal nerve, some fibers run along the long ciliary nerve to the ciliary ganglion। यानी इन शॉर्ट ये तुमको दोनों गैंग्लियन से कम्युनिकेशन कराती है, कौन सी, इंटरनल कैरोटिड नर्व। फिर एक्सटर्नल कैरोटिड ब्रांचेस जो होती है प्लेक्सस बना लेती है एक्सटर्नल कैरोटिड पे, एंड विल फॉर्म सम ऑफ द फाइबर्स रन ऑन द रूफ ऑफ द ओर्टिक एंड सबमैंडिबुलर गैंग्लियन के थ्रू जुड़ती है। ओर्टिक पे जो जुड़ेंगी वो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के थ्रू पहुंचेंगी, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन पे जो पहुंचेंगी दैट विल रन अलोंग द फेशियल आर्टरी। फेरेंजियल ब्रांचेस जो होती हैं दे फॉर्म फेरेंज के अराउंड प्लेक्सस बनाती है, फेरेंजियल प्लेक्सस बना लेती हैं। और लेफ्ट सुपीरियर कार्डिक ब्रांच होती है वो सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सस में जाती है, और कार्डिक ब्रांच बाकी राइट साइड से डीप कार्डिक प्लेक्सस में जाती है। ये भी तुमको बता दिया गया है। आज इसको ना पूरा रीडिंग डाल लेना अच्छे से, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन पढ़ाया हुआ इसलिए समझ में आ जाएगा। आई एम शोइंग यू सो मेनी अदर डायग्राम्स, आगे चीजें याद हैं। दिस इज लाइक यू नो सुपीरियर कार्डिक सिंपैथेटिक गैंग्लियन। तो यू कैन सी कि इसकी कम्युनिकेशंस जाती हैं 9, 10, 11, 12 क्रेनियल नर्व्स के लिए। ये ग्रे रमाई कम्युनिकेंटिस है, C1 to C4 तक के लिए है। फिर क्या इधर देखो नर्व्स कौन सी होती हैं, कार्डिक ब्रांच होती है, फेरेंजियल प्लेक्सस बना लेती हैं, एंड डोंट फॉरगेट ये इसमें जो अपने डायग्राम में है यू कैन इंक्लूड कि जो यू नो कीमो रिसेप्टर बैरो रिसेप्टर्स हैं बाइफर्केशन पे, तो यानी कैरोटिड बॉडी इन कैरोटिड साइनस को जो सिंपैथेटिक इनवर्जन है वो कहाँ से आता है, याद रखना सुपीरियर सिंपैथेटिक सुपीरियर सिंपैथेटिक गैंग्लियन से आता है, सर्वाइकल गैंग्लियन। ये थोड़ा सा डायग्राम है, वैसे तो इसलिए हम बता रहे थे कि ये तुम लोग को पढ़ाया गया होगा अब तक, नहीं तो पढ़ा दिया जाएगा। आई थिंक दिस इज रिगार्डिंग द टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन एंड सीलियरी गैंग्लियन। मैंने बताया था ये देखो ये क्या है, सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन, जहां पे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स रिले कर रहे हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स यहां से इमर्ज कर रहे हैं। किसके साथ इमर्ज कर रहे हैं, इंटरनल कैरोटिड नर्व, जो कि गैंग्लियन के अपर एंड से निकलती है। इंटरनल कैरोटिड नर्व निकलेगी तो किसके साथ चलेगी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ चलेगी। इंटरनल कैरोटिड क्रेनियम में घुसेगी, क्रेनियम में कहां, पेट्रस टेम्पोरल बोन के अंदर जाएगी, वहां पे भी रहेंगी इसको पेट्रस ब्रांचेस मिलेंगी। और पहले तो इसमें it will give carotid-tympanic branches, तो ये मिडिल ईयर को पहुंच जाएंगे, मिडिल ईयर के अंदर टिम्पैनिक प्लेक्सस फॉर्म करती हैं, ठीक है। प्लस पेट्रस टेम्पोरल के अंदर एक ब्रांच और दे देगी, दैट इज कॉल्ड डीप पेट्रोसल नर्व। डीप पेट्रोसल नर्व याद रखना कि ग्रेटर पेट्रोसल नर्व नाम तुम लोग पढ़ चुके हो, किसमें पढ़ा था, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व नाम तुमने सबमैंडिबुलर गैंग्लियन के टाइम पढ़ा था। तो ग्रेटर पेट्रोसल नर्व से जो ब्रांचेस आ रही थी वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, ये जो है लिंगुअल नर्व के थ्रू आ रहे थे और जाकर के कॉर्डा टिम्पैनाई के थ्रू आते, उसके बाद इधर भी जा रहे हैं, कॉर्डा टिम्पैनाई में भी जाते हैं। देन इट फॉर्म, यानी कि ग्रेटर पेट्रोसल नर्व एक्चुअली क्या है, ये सिक्रोटोमोटर नर्व है, और डीप पेट्रोसल क्या है, सिंपैथेटिक है। दोनों जुड़ेंगे फोरम एंड लैसरम में, एंड दे विल फॉर्म दिस नर्व कॉल्ड नर्व ऑफ टेरिगोइड कैनाल। नर्व टेरिगोइड कैनाल कहाँ किसमें खुलेगी आकर के, टेरिगोपैलेटाइन फोसा में, यानी वहां पे होगा टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। उसमें विदाउट बीइंग रिले इट विल पास आउट थ्रू द इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, और इन्विटर उसके बाद ऑर्बिट में इंटर करेंगे। ऑर्बिट में देयर इज अ मसल कॉल्ड ऑर्बिटैलिस, ऑर्बिटैलिस को इनर्वेट कर देंगे। तो दिस नर्व याद रखना, दिस नर्व, this is called the nerve pterygoid canal, which is formed by the fusion of greater petrosal and deep petrosal. This nerve is called Vidian nerve. Vidian nerve बहुत कॉमन हिट पूछी जाती है। Vidian nerve क्या होती है, दो नर्व्स के जुड़ रही है, एक पैरासिम्पैथेटिक एक सिंपैथेटिक, दोनों नर्व्स मिला के बनती है नर्व टेरिगोइड कैनाल कॉल्ड वीडियन नर्व। ये इसलिए बता रहे हैं ऑर्बिटालिस क्योंकि इसी से एसोसिएटेड है हॉर्नर्स सिंड्रोम, हेड एंड नेक में आता है, ये पूछा जाता है हॉर्नर सिंड्रोम। तो ऑर्बिटैलिस को सप्लाई करती इस वजह, इसके पैरालिसिस से क्या हो जाएगा, एनएफ्थाल्मोस यानी आई बॉल विल बी संकन इनसाइड। फिर क्या है, ये जो इंटरनल कैरोटिड है इट रीचेस इन विद इन द क्रेनियम, और ये क्रेनियल ब्रांचेस में मिडिल एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एज वेल एज ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। ऑफ्थैल्मिक आर्टरी के साथ जो सिंपैथेटिक फाइबर्स चलेंगे दे विल नाउ कंटिन्यू अलोंग विद द थर्ड क्रेनियल नर्व, और थर्ड क्रेनियल नर्व के से अटैच कौन सा होता है, सीलियरी गैंग्लियन। सीलियरी गैंग्लियन से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, दीस आर कॉल्ड शॉर्ट सीलियरी नर्व्स व्हिच सप्लाई द ब्लड वेसल्स टू द आई बॉल,
और इसी में जो देखो नेजोसिलरी भी ब्रांच होती है इसी की, ऑफ्थैल्मिक नर्व की। नेजोसिलरी से जो ब्रांचेस निकलेंगी दे विल बी कॉल्ड द लॉन्ग ciliary nerves, and long ciliary nerves will supply the dilator pupillae। ठीक है, तो डायलेटर पिपिले के लिए है लॉन्ग सिलियरी नर्व्स, और ये सब किसके थ्रू आ रहा है अल्टीमेटली, यानी ऑफ्थैल्मिक नर्व की ब्रांचेस के थ्रू पहुंच रहा है। ठीक है, ओके सुपीरियर। इसमें रिलेशंस में यहाँ पे भी एक तुम्हारे और ये डीप स्ट्रक्चर इन द नेक जो चैप्टर है, इसको ध्यान से 2-4 बार रेगुलरली देखने लगोगे ना तो डायग्राम्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। जो गैंग्लियन होता है ये सिंपैथेटिक चेन है, और रिमेंबर ये जुगुलर फोरामेन है। जुगुलर फोरामेन से निकल रही थी देखो 9th नर्व, 10th नर्व, 12th नर्व, 11th नर्व, और 12th भी वही है, हाइपोग्लॉसल कैनाल से वो निकलती है, तो वहीं पे आ रही होती है बिलो द स्कल। तो दे आर ऑल लाइंग इन एंटीरियर रिलेशन टू द सुपीरियर गैंग्लियन। एंटीरियर रिलेशन में यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड भी है, इसके पीछे की तरफ क्या है, प्रीवर्टिब्रल फार्शिया एंड प्रीवर्टिब्रल मसल में लॉन्गस कैपिटिस। ठीक है, ये है एक्चुअली पोस्टीरियर व्यू। नाउ ध्यान से देखो, ये पोस्टीरियर व्यू, कान दिख रहे हैं, कान देखने से तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि ये हम पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो ये फेरिंग्स के 3 कंस्ट्रिक्टर्स होते हैं, राइट। दिस वन इज द सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, ये मिडिल कंस्ट्रिक्टर, ये इंफीरियर। एज आई टोल्ड यू कि चाय के जो ग्लास होते हैं एक के ऊपर एक 3 ग्लासेस रख देते हैं, तो दिस इज हाउ यू नो सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल्स हैं। और तुम्हें बताया कि सुपीरियर और मिडिल कंस्ट्रिक्टर के बीच में कौन सी मसल पास होती है, दिस इज द ओनली मसल डिराइव्ड फ्रॉम द थर्ड फेरिंजियल आर्च, और ये मसल है स्टाइलोफेरिंजियस। तो ये गैंग्लियन रखा हुआ है बिहाइंड द कंस्ट्रिक्टर्स ऑफ द फेरिंग्स। ठीक, ये मिडिल, ये इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन है। ठीक, middle cervical sympathetic ganglion का shape and size, it's very small, may be divided in 2 or 3 smaller parts, or may be absent। बताएं situation कहाँ है, it will be lower part of the neck में होगा, minimum front of the vertebrae, यानी कि in front of the vertebrae C6 है ना, just opposite the inferior thyroidal artery के लेवल पे होती है, and behind the carotid sheath। यहाँ पे लेकिन आर्टरी कौन सी होगी, कॉमन कैरोटिड, जो कि लेवल क्या है, C6। फॉर्मेशन क्या है, बाय द फ्यूजन ऑफ 5 and 6 सर्वाइकल गैंग्लियन फ्यूज करके बनते हैं, कनेक्टेड डायरेक्टली टू द इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से जुड़ा है। दो तरह से, एक डायरेक्ट है और दूसरा है थ्रू द लूप दैट वाइंड्स अराउंड द सबक्लेवियन आर्टरी, आंसर सबक्लेविया। जल्दी से देखो, ये इंफीरियर थायराइडल आर्टरी है जिसकी बारे में बात हुई थी। ठीक है, इसके अराउंड सिंपैथेटिक प्लेक्सस एसेंड करेगा, कहां से, मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन के थ्रू, मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन के थ्रू, इंफीरियर थायराइडल आर्टरी के थ्रू प्लेक्सस आएगा, एंड विल सप्लाई द यू नो वैसोमोटर, नॉट सिक्यूटोमोटर, वैसोमोटर सप्लाई टू द थायराइड ग्लैंड। वन थिंग, इसी डायग्राम में ये बात हुई थी कि लाइगेशन यहाँ पे होगा, क्योंकि एक्सटर्नल नेरेंजियल नर्व मूव्स अवे फ्रॉम दिस आर्टरी, इसलिए दिस आर्टरी इज लाइगेटेड क्लोज टू द ग्लैंड। हाउएवर इन दिस इंफीरियर थायराइडल आर्टरी दिस इज लाइगेटेड अवे फ्रॉम द ग्लैंड, क्योंकि ये कैन सी दैट this is the recurrent laryngeal nerve. Recurrent laryngeal nerve is so close to the gland that you cannot ligate the artery so close to the gland, because the chance of injuring to this. Now, so it is, this inferior thyroidal artery is ligated away from the gland. Okay, इतनी सारी चीजें हैं, ध्यान से सुनते रहोगे, सुनते सुनते सब चीजें याद हो जाती हैं। ब्रांचेस की बात करें, मिडिल सर्वाइकल में ग्रेड अमागमेंटिस बाय 5 and C6 क्रेनियल सर्वाइकल नर्व्स के साथ निकलेंगी। थायराइडल ब्रांचेस बताया जो इंफीरियर थायराइडल आर्टरी के साथ जाएंगी, थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करेंगे, थायराइड को भी निकलेंगे। ट्रैकियली नीसोफेजियल ब्रांचेस होती हैं, दे फॉर्म अ प्लेक्सस अराउंड द विसरा मिडिल, एंड मिडिल सर्वाइकल ब्रांचेस जो होती हैं, दे डीप कार्डियक प्लेक्सस हो जाएंगी। एंड एक इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि मिडिल सर्वाइकल ब्रांचेस विल बी द लार्जेस्ट। ठीक, यस। inferior cervical ganglion formation, जल्दी से the formation of 7th and 8th cervical ganglion जुड़ के बनते हैं। it is often fused with the first thoracic ganglion, अगर जुड़ जाएगा तो उसको कहेंगे cervicothoracic ganglion या stellate ganglion भी कह सकते हैं। situation कहाँ पे होते हैं, ये थोड़ा सा बार बार रटाया मैंने, between the transverse process of the cervical C7 and the neck of first rib के बीच में पाया जाएगा। ठीक है, it lies behind the vertebral artery first part के, and front of the ramus of spinal C8 nerve। ये इतने तरह से लिखा है, किसी एक में ये ऑप्शन बना के बन सकते हैं कि कौन सा गलत है, तो ये सारी चीजें इनकी एग्जैक्ट लोकेशन बताती हैं। सर्वाइकोथोरैसिक गैंग्लियन अगर इसमें जुड़ जाएगा स्टेलेट गैंग्लियन, तो फिर इट विल लाई इन फ्रंट ऑफ द नेक ऑफ फर्स्ट रिब।
ठीक है, स्टिलेट गैंग्लियन होगा तो फर्स्ट रिब के आगे पाया जाएगा। इसकी ब्रांचेस क्या है भाई, 7 एंड 8 सर्वाइकल नर्व्स के साथ ग्रेनामाई कम्युनिकेटर्स जुड़ेंगे, अपर लिम्ब को सप्लाई करेंगे। वर्टिब्रल ब्रांचेस भी होंगे तो वर्टिब्रल आर्टरी के अलाउंग प्लेक्सस बनाएंगे। सबक्लेवियन ब्रांचेस होंगे तो फ्रॉम द सबक्लेवियन आर्टरी के अलाउंग प्लेक्सस बनाएंगे। प्लेक्सस जॉइंड बाय ब्रांचेस फ्रॉम द एंसा सबक्लेवियर के भी ब्रांचेस मिलेंगे इसको। Inferior cardiac branches goes due to the both the side, right and left, they will reach to the deep cardiac plexus, दोनों तरफ से reach to the deep cardiac plexus, ठीक है, overlying the carina। और ये देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, नाउ लुक हियर, दिस इज द इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, ठीक है। तो इंफीरियर सर्वाइकल और मिडिल सर्वाइकल के बीच में जो ये कम्युनिकेशन है ये भी स्प्लिटेड है, राइट। और इन दोनों के बीच में कौन सी आर्टरी चल रही, वर्टिब्रल आर्टरी। इस तरह का कुछ तुमने सिमिलर कोर्स देखा था, याद करो कहां पे देखा था, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी और ये ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, याद आ गया। ये सेम पैटर्न वहां पे देख चुके हो तुम ओटिक गैंग्लियन के लेवल पे, वेयर दिस मिडिल मेनिंजियल आर्टरी वाज बीन एम्ब्रेस्ड बाय ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। अब यहाँ पे क्या बात हो रही, नाउ वर्टिब्रल आर्टरी, ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी है, राइट। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्टिब्रल देखो C7 ट्रांसवर्स प्रोसेस है, इसके थ्रू इसने परफोरेट नहीं किया है C7 को, लेकिन अपर 6 को परफोरेट करेगी, ये उनके ट्रांसवर्स प्रोसेस के थ्रू जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी व्हिच इज बीइंग एम्ब्रेस्ड बाय द two roots of communicating channels of this sympathetic trunk from middle to inferior ganglion। उसके बाद ये है लूप एंसा सबक्लेविया which loops this first। एक और important बात है that you will find that internal thoracic duct, thoracic duct का highest level जो होता है that is at the level of transverse process of C7, ठीक है, ये नेक में आता है। उसके बाद नेक में आने के बाद ये ड्रेन कहाँ पे करता है, who will tell me that thoracic duct किस में ड्रेन करता है, it drains into the bifurcation of कहाँ पे, इंटरनल जुगुलर, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर एंड लेफ्ट सबक्लेवियन दोनों जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ठीक है। तो लेफ्ट इंटरनल thoracic duct drains the lymph, पूरा बॉडी का एक्सेप्ट द राइट क्वाड्रेंट, it drains the lymph, it's the largest lymphatic channel, it drains into the at the junction of the internal jugular and left subclavian where the two join to form the left brachiocephalic vein, वहां पे ये thoracic duct खुलता है। तो thoracic duct is seen on the left side at the level of the transverse process of C7, ये भी याद रख लेना। एक और चीज है, ये ट्राइंगल बहुत पूछा जाता है, ये ट्राइंगल क्या है, दिस इज कॉल्ड द सबक्लेवियन ट्राइंगल। तो सबक्लेवियन ट्राइंगल का क्या मतलब होता है, सबक्लेवियन ट्राइंगल ऑफ कोर्स ये लेफ्ट साइड से हम देखेंगे तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन यानी कि सबक्लेवियन आर्टरी, ऑफ कोर्स इसके नाम पे ही पड़ा है सबक्लेवियन ट्राइंगल, प्लस कैन यू सी ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है और ये वर्टिब्रल आर्टरी का फर्स्ट पार्ट है जो कि इन दोनों के बीच में से पास हो रहा है, और ये थोरैसिक डक्ट है जो ट्रांसवर्स प्रोसेस के जस्ट नीचे पाया जा रहा है। इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन है, फर्स्ट सेकंड ब्रांचेस हैं, ठीक है, थैरो सर्वाइकल ट्रंक है, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी है, और ये बॉर्डर्स किससे बन रहे हैं, कैन यू सी, दिस इज एज ऑफ स्क्लेनियस एंटीरियर और इधर की तरफ एज ऑफ लॉन्गस कोलाई, ठीक है, और ये बेस ऑफ द क्लैविकल से ये तीन जो है बाउंड्रीज बन रहा है। तो ट्राइंगल की बाउंड्रीज याद आ जाइए, स्क्लेनियस एंटीरियर आगे, पीछे लॉन्गस कोलाई, बीच जो क्लैविकल है, और ये ट्राइंगल है सब क्लेवियन ट्राइंगल, ठीक है। अब कंटेंट्स तुमको याद हो गए, ओके। एंड एक मिनट, एपेक्स जो है ये ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C8 गलत लिखा है यहाँ पे, यू कैन करेक्ट इट, ये C6 होगा, ठीक है, C6 का ट्रांसवर्स प्रोसेस। बाकी तुमने सब कुछ देख लिया है, ठीक है। वसुंधरा प्रॉब्लम हो रही है, चल रहे हैं बस सारे गैंग्लियन सबकी ब्रांचेस, ठीक है, ओके। ये तुम्हारे बुक में ऑल्दो दिया है, बस इसमें से इतनी जाने, सुपीरियर के आर्टीरियल ब्रांचेस, ये वाली ग्रे रमाए क्रेनियल नर्व से अटैच्ड है, एंड विसरल ब्रांचेस। इस तरह से तीनों गैंग्लियन के कम्युनिकेशंस रट लेने अच्छे से तुमको, ठीक है। कार्डियक कम्युनिकेशन तीनों में होगा, इसमें थोरैसिक, इसोफेगस, ट्रैकिया यू कैन इंक्लूड ये, और मेन चीज है ना, ये आर्टरी से किससे जुड़ रहे हैं ये भी याद रखना है, ठीक है।
तो मिडिल वाला इंफीरियर थायराइडल आर्टरी से, इंफीरियर वाला 2 आर्टरी सब क्लेवियन एंड वर्टिब्रल आर्टरीज, और सुपीरियर वाला इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड एंड कॉमन कैरोटिड्स। इसके बाद लास्ट में ये रह जाता है कि clinical allied, head and neck are supplied with sympathetic nerves arising from the upper four thoracic segments of the spinal cord. Most of these fibers pass through the stellate ganglion to relate the superior cervical ganglion. Injury to the cervical sympathetic trunk leads to Horner syndrome. Horner syndrome के फीचर्स क्या कहते हैं? हमने 5 फीचर्स बताए थे, याद रखना, रट लेना, निमोनिक बना लेना, whatever. Ptosis, meiosis, anhidrosis, anophthalmos, loss of ciliospinal reflex. ये Horner syndrome के features हैं. Ptosis is partial drooping of the eyelid. Meiosis is constriction of the pupil. Anhidrosis is loss of secretions. यानी कि drying हो जाती है इसमें, उसमें secretions की. And anophthalmos is sinking of the eyeball. Loss of ciliospinal, when somebody pinches the back of your neck, your actually मीड्रियासिस हो जाती है, डायलेटेशन ऑफ पिपल हो जाता है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं, लेकिन यानी कि कहीं पे भी अगर सिंपैथेटिक चेन में कहीं प्रॉब्लम आती है तो ये फीचर्स आएंगे, लेकिन चूंकि इंफीरियर वाले से जुड़ा है और इंफीरियर से ही T1 की फाइबर सबसे पहले आते हैं और वहां पे इंजरी होगी, यानी कि हम व्हाई वी लाइक reading this in upper limb also because of the injury to the lower trunk of brachial plexus. याद करो क्लम्पकेस पैरालिसिस के साथ में हॉर्नर सिंड्रोम एसोसिएटेड रहता है, इसी वजह से। अदरवाइज ये जो थैलमस से ग्रे T1 to L2 लेटरल हॉर्न्स, राइट, वहां पर कैसे आ रहे हैं? अपर हायर सेंटर से, यानी थैलमस से जो सिंपैथेटिक कनेक्शन है, थैलमस टू दी लेटरल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में जो कनेक्शन है, यानी हायर सेंटर्स पे भी अगर इंजरी होगी तो भी हॉर्नर्स हो जाएगा। याद रखना है कि हॉर्नर्स इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद द sympathetic chain but also Horner syndrome can also be caused by the lesion in the central nervous system where at or above the level of first thoracic segment of the spinal cord involving sympathetic fibers, यानी कि जो थैलेमस से फाइबर्स फर्स्ट thoracic sympathetic आ रहे हैं उस लेवल पे भी कोई अगर इंजरी होती है तो भी हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल डन। आई थिंक हम नहीं कराएंगे एमसीक्यूज बिकॉज लोग बोर हो जाते हैं और टाइम बहुत हो चुका है, सो आई एम जस्ट कंप्लीटिंग इट एंड यू पीपल गिव योर अटेंडेंस, सो इट विल बी मार्क्ड हियर, ठीक है। ओके, इट्स डन फॉर टुडे। यू गिव योर अटेंडेंस।